بولو جاکر صاحب، بتائیے اپنا مکمل علیکم۔ عقیدہ۔ وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی اپنا مکمل عقیدہ بتائیے جاکر صاحب۔ جی، میں اپنا مکمل عقیدہ بتاتا ہوں، وضاحت لے لینا، پھر آپ اپنا مکمل عقیدہ بتائیں گے، میں وضاحت لے لوں گا۔ ہمارا اہل حدیث، اہل توحید، اہل سنت والجماعت کا مکمل موقف یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر ہے، بلا کیفیت اور بلا تعویل، اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ علم، قدرت، رحمت اور مدد کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے۔ چلیے اب آپ اپنا عقیدہ بتائیں، یا پھر اس کے اوپر کوئی وضاحت لینا ہے تو وضاحت لے لیں۔ نہیں، آپ مکمل نہیں بتائے، میں نے یہ پوچھا تھا کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے صرف عرش پر ہے اور کہیں نہیں ہے؟ بالکل، صرف عرش کے اوپر ہی ذات کے اعتبار سے، اگر اس زمین کے اوپر تو بالکل نہیں ہے، نہ انسانوں کے ساتھ حلول کیے ہوئے ہیں۔ حلول کا تو کوئی قائل نہیں ہے، یہ تو آپ ہر جگہ مطلب حلول والا ہی عقیدہ ہے۔ جب آپ اپنی ہی طرف سے سب کچھ لگا رہے ہیں تو دوسرا عقیدہ بالکل کیوں بتائے گا؟ ہاں تو چلو بتا دو، میں تو بتا دیا۔ دوسرا کیوں بتائے گا؟ تو آپ کا بالکل حلول والا عقیدہ اس لیے نہیں بتائے گا۔ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش کے اوپر ہے، مطلب عرش سے ملا ہوا نہیں ہے، عرش سے اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے، آپ مطلب عرش سے مس نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ ہاں، عرش سے مس نہیں ہے، اور بالکل عرش کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، ذات کے اعتبار سے تو کہیں نہیں، علم و قدرت کے اعتبار سے ہمارے ساتھ۔ ذات کے اعتبار سے ہی بات ہو رہی ہے۔ ہاں بالکل، کلیئرٹی دیتے تو جا رہا ہوں آپ بار سب بار۔ جگہ مان رہے ہیں، ہم اس پہ کیوں بحث کریں گے؟ ٹھیک ہے، ہاں کلیئرٹی تو رہنا چاہیے۔ چلیے جی کلیئرٹی تو دے رہا ہوں پھر سے۔ ہاں چلیے اب آپ بتائیں، کیا بتاؤں میں؟ آپ اپنا عقیدہ بتائیں تاکہ میں وضاحت لے لوں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یہ کس کا عقیدہ ہے پہلے بولو تو صحیح، جیسا میں بتایا کہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ عظمتی ہی یہ میں کہہ رہا ہوں قرآن اہل سنت و جماعت کا ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ کہ ہاں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، کما یلی کا ذات کے اعتبار سے، ہاں ذات کے اعتبار سے اس زمین پر بھی ہے، وہ عظمتی ہی، جیسا کہ اس کے شان اور اس کی عظمت کے لائق ہے، اس زمین پر بھی ہے۔ تم تو یار بچے ہو، ہر جگہ مطلب اس زمین ہی ہے، ہر جگہ جگہ تم کہو گے پانی میں ہے کہ سمندر میں ہے کہ نہر میں ہے، ہر جگہ ہے کہ خود بخود ہو گیا، پیڑ پہ ہے، یہ عجیب سوال ہے یار تمہارا۔ عجیب نہیں، وہ خود تم نے خود کہہ دیا، جیسا کہ اس کی شان اور اس کی عظمت کے لائق ہے، تو بس سمجھ ارے تو میں کیا کہہ رہا ہوں، ہمارے ساتھ ذات کے اعتبار سے اس کی شان کے لائق، یہ بولنا چاہ رہے کیا؟ ہم تو کہہ رہے ہیں نا۔ ہاں تو بولو، ذات کے اعتبار سے اس زمین پر بھی ہے ہمارے ساتھ، ہر جگہ اللہ تعالیٰ زمین پر ہے، کھول کے بولو، زمین پر بھی ہے، شان کے لائق ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کی عظمت کے لائق ہے۔ بالکل میں کہہ رہا ہوں ذات کے اعتبار سے ہی ہے نا، زمین پر بھی۔ ارے یار میں تو تم تو بچہ آدمی ہے، تو کھل کے بتاؤ کیا مراد ہے؟ ہر جگہ سے کیا مراد ہے؟ ہر جگہ سے کیا مراد ہے؟ سنو نا، میں بتاتا ہوں، میں وضاحت دے رہا ہوں، ہر جگہ سے کیا مراد ہے؟ اتنا اریٹیٹ ہو رہے ہو، تو تو ہو رہا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نکلا کہ تمہارے ایک مقلد راشد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسی پل، اسی لمحہ، اچھا یہ بتاؤ، تم راشد کے مقلد ہو، راشد صاحب کے مقلد ہو، تم راشد کے صاحب کا کیا حوالہ لے رہے؟ یہاں پہ میری بات کرو، ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی، راشد صاحب کے بات سنو جو جا کے تم بھی مقلد، اس کا بھی عقیدہ تمہارا بھی، تو اندھا مقلد ہے، تو اندھا مقلد ہے، وہ تو ایک دم اندھا مقلد ہے، بولو تو کبھی بھی بات کر لے، وضاحت تو لینے دو یار، ادھر ادھر بات نہیں کرو، صرف مجھ سے بات کرو، ٹھیک ہے؟ ادھر ادھر کی مثال، ابھی میں نے مثال یہ ہے، اس کا مطلب مجھے اس کی وضاحت کرو آپ کے عقیدے کی کہ اللہ تعالیٰ اسی پل، اسی لمحہ، اسی سیکنڈ اس زمین پر بھی ہے، اسی پل، اسی لمحہ، اسی سیکنڈ وہ پہلے آسمان پر بھی ہے، اسی پل، اسی لمحہ، اسی سیکنڈ وہ عرش کے اوپر بھی ہے، یہ آپ کا عقیدہ درست ہے؟ آپ کے اکابر کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ؟ آپ کا چھوڑ دو یار، مطلب ہم تو عقیدے میں تقلید نہیں کرتے۔ اب تم دوسرے کا نام لیے تو میں نے نہیں بولا، ابھی مجھے بولنے دو۔ یہ آپ کے اکابر کا عقیدہ ہے، جیسے ثناء اللہ امرتسری کہتے ہیں اللہ بذات خود اور علم کے ساتھ ہر چیز ہر کام پر حاضر ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ کے سنو پوری بات سنو، آپ کے دوسرے اکابر حکیم محمد صادق توحید
पहले इनका हो जाने दो। नहीं आप अरे रुको यार, काम आ गए, तुम अपना बताओ बोले तो इधर आ रहे। यकीन करें अल्लाह ताला हाजिर और नाजिर मौजूद है, ठीक है, और कहते हैं तमाम खलवतों और जलवतों में हाजिर और नाजिर और मौजूद है। अल्लाह की इस सिफत हाजिर नाजिर और हर जगह मौजूद होने में कोई उसका शरीक नहीं है। तो बताओ आपका सुनो ना, आपका अकीदा इसके खिलाफ है क्या? ये जहमिया का अकीदा है क्या? मैं तुम्हारी अंधभक्ति का जवाब दे रहा हूँ। बताओ। तफसीर सनाई उठाओ और उसकी सूरह ताहा की आयत नंबर 5 पढ़ो, सूरह राद सूरह नंबर 13 मेरी दलील के साथ दे रहा हूँ। तफसीर सनाई की आयत नंबर 2, सूरह यूनुस की आयत नंबर 3। ये बोलो मैं दलील है, मैं क्या तकलीद थोड़ी बोल रहा हूँ या किसी इमाम का कौल नकल कर रहा हूँ? तकलीद एक तो वाजिब और जरूरी चीज है। तू तो अंधा मुकल्लिद है। तकलीद किसी पर वाजिब नहीं होती है। बिल्कुल वाजिब है, जो जरूरी चीज है वाजिब है आमी के लिए। इस पर तो कभी बात ही नहीं करता। अच्छा, मनगढ़ंत तकलीफ का तो जनाजा निकालता हूँ हर वक्त में। मनगढ़ंत तो तू अंधे मुकल्लिद है यार, बीच में बड़बड़ चल बोल। ये देखो, बीच में ना बोलो। जब आपको मैंने कहा वजाहत बोलो तो आपने वजाहत ले ली। तो अंधा आपकी वजाहत ले रहा हूँ तो फिर बीच में कर रहा है। अरे तो तुम मुकल्लिद हो तो बोलो मुकल्लिद हूँ। तू अंधा मुकल्लिद है, तू बोल तू अंधा मुकल्लिद है। मैं तो वो हूँ जो आपके इमाम साहब थे माशाल्लाह से, उनको बोलो गैर मुकल्लिद। इमाम साहब ने खुद लिखा वो गैर मुकल्लिद है। कौन? आपके कई सलफ ने, कई आइम्मा ने, कई उलमा ने लिखा कि इमाम अबू हनीफा गैर मुकल्लिद है। चलो कई आप बताए हो ना, मुझे दो खाली हो गए, मुझे दो दिखा देता हूँ। मुझे बाद में मैं तकलीफ पर जब हमारी बात होगी तब मैं बताऊंगा। झूठ बोल के भाग गया, देखो ये झूठ बोल के भागा। अरे अभी तुम भाग रहे हो यार अपने अकीदे से, वजाहत लेने दे ही नहीं पा रहे हो। तुम इतना बड़बड़ क्यों करते हो, मुझे समझ में नहीं आता। बड़बड़ कर रहा है, इधर उधर भाग रहा, तकलीफ से भाग रहा है। वजाहत ले रहा हूँ, मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। आइन अल्लाह पे है तो वही बात का तकलीफ। आपने जो सुनिए ना, आपने जो सनाउल्लाह की बात बताई, मैं तफसीर सनाई में बता रहा था कि तफसीर सनाई में वाज़ेह तौर पर फिर बीच में आ गए। मुकम्मल बात होने दो। आपने तो खाली ऐसे ही डींगे लगा के उड़ा दी बात। मैंने पूछा कि क्या तुम्हारा अकीदा ये है कि अल्लाह इसी पल, इसी लम्हा, इसी सेकंड इस जमीन पर भी मौजूद है ज़ात के एतबार से? इसी पल, इसी लम्हा, इसी सेकंड वो पहले आसमान पर भी है? ये बताओ ना, क्यों नहीं बता रहे हो इसके ऊपर? अल्लाह ताला हर जगह है। फिर मुझे बोलने नहीं दे रहे। बताओ वजाहत जिस चीज की पूछ रहा हूँ उसकी दो वजाहत, या नहीं देना है तो फिर मनगढ़ंत अकीदे घड़ते क्यों? फिर ये तुम्हारा मनगढ़ंत अकीदा है जो अभी तक अपने अकीदा ही बात। मैं आपको बता रहा हूँ कि सनाउल्लाह की बात बताने ही नहीं दे रहे हो, तुम बीच में आ जाते हो फिर से। मेरी बात सुनने, पहले मेरी बात होने दो, मैं तुमको मौका दूंगा बोलने का, बीच में ना हो। और बार बार बीच में बोलने से मनगढ़ंत अकीदा तुम्हारा साबित नहीं होगा। तुम्हारा मनगढ़ंत है यार, तुम गुमराह आदमी। बिल्कुल मनगढ़ंत है, साबित मैं करूंगा ना। आपने नाम साबित करेगा अपने अकीदे पे दलील नहीं दे पा रहा, बोलता देखे अभी ये नहीं बोलने देगा मुझे। इसका यही तरीका है, इसलिए मैं इससे बातें करना है। इसीलिए मैं नहीं करता हूँ इससे गुफ्तगू। जब ये बोलता है तो मैं खामोश होता हूँ, जब मैं बोलता हूँ तो इसकी मनगढ़ंत तकलीफ चालू हो जाती है। में डरता है, यहाँ डरता है, करेगा बीच में ना बोलो यार, तुम्हारी मनगढ़ंत तकलीफ ना घुसेड़ो बीच में। फिर ये बदमाशी करने लगा, तकलीफ में जा रहा है। अभी मैं तुमको ये मुकल्लिद जो है, ये अंधे मुकल्लिद की बात बोलो, तुम्हारी मनगढ़ंत तकलीफ बता दीजिए। हाँ, अपने मुद्दे पे तकलीफ पे बात करना है। आपने नहीं, किस पे बात करना? अरे रुको यार, खामोश रहते या नहीं रहते बोलो। अरे तू खामोश कहाँ रहता है? इन्होंने क्या नाम लिया जब मैंने इनसे पूछा कि अल्लाह की जात क्या जमीन पर भी है, इसी पल, इसी लम्हा, इसी सेकंड पहले आसमान पर भी है, अर्श पर भी है? तो इन्होंने जब बजाय हाँ या ना में जवाब देने के, इन्होंने सनाउल्लाह अमृतसरी की बात ली। मैं बता रहा था सनाउल्लाह अमृतसरी की तफसीर उठा के पढ़ो। उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि अल्लाह ताला का इल्म हर जगह मौजूद है, अल्लाह ताला जात के एतबार से अर्श पर है। लेकिन ये आधी अधूरी बात ले लेते हैं, आधी अधूरी बात छोड़ देते हैं। ये अच्छा दलील दे दे। अब सुनो, अब बीच में ना बोलो, मेरी बात होने दो, उसके बाद आप बोलो। बीच में दोनों बोलेंगे तो कहाँ समझ में आएगा? अब आपने फिर अगेन ये कहा कि ये अकीदा अगर सही नहीं है तो ये अकीदा तो सनाउल्लाह अमृतसरी का है, ये अकीदा तो तुम्हारे फलां का आपने नाम ले लिया। और हम बारहा कहते हैं कि चाहे वो किसी भी आलिम की बात हो, और एक उसूल होता है
क्या उसूल है कि अगर किसी भी सहाबी की बात से किसी ताबईन की बात टकराती है तो ताबईन की बात को छोड़ा जाता है और सहाबी की बात को लिया जाता है, और किसी भी तबे ताबईन की बात टकराती है ताबईन से तबे ताबईन की बात को छोड़ा जाता है, ताबईन की बात लिया जाता है। इसी तरह जब किसी आम आलिम की बात वो टकराती है बड़े मुहद्दिस से, बड़े आलिम से, बड़े आइम्मा से, तो उनकी बात छोड़ी जाती है। और स्पेशली इजमा पर जब इजमा आ जाता है ना मेरे भाई, जब इजमा आ जाता है किसी बात पर, तो ना वहाँ पर किसी आलिम की बात मानी जाती है, ना यहाँ पर किसी मुफ्ती का फतवा माना जाता है। इस पर इजमा है अहले सुन्नत वल जमात का कि अल्लाह ताला हर जगह है। ये जहमिया का अकीदा है। अब इजमा आ जाने के बाद में चाहे वो कोई भी बोल लो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। मैं तो इजमा लगा दिया आपको। अब आप बताइए कि ये तो इस पर वजाहत दे गया ना भाई तुम्हारा, मुझे आप बोलो, वजाहत लो, मैं खामोश होऊंगा, बीच में आपकी तरफ थोड़ी बोलूंगा मैं। हाँ, ये इसने भाई ने कहा कि सनाउल्लाह अमृतसर की फला फला तफसीर देखो, लेकिन इसके पास कोई दलील नहीं है। मैं दलील देता हूँ, देखो फतावा सनाइया, ठीक है, जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 299। अगर ये कहे तो मैं इसके व्हाट्सएप पे भेज भी दूँ। इसमें लिखा है कि हाजिर और नाजिर किसी के मायने है सामने मौजूद, पस अंबिया औलिया को हाजिर नाजिर मानना शिरक है, क्योंकि खुदा की किसी सिफत खासा से किसी दूसरे को मौसूफ जानना शिरक है। तो ये कह रहे हैं हाजिर और नाजिर मानना खुदा की सिफत है। कौन बोलता है? सनाउल्लाह अमृतसरी फतावा सनाइया में। यह इनके नजीर हुसैन देलवी ये कहते हैं हर जगह हाजिर और नाजिर होना और हर चीज की हर वक्त खबर रखना खास जाते अल्लाह ताला बारी ताला के वास्ते है, यानी अल्लाह ताला के लिए खास सिफत मानते हैं हाजिर और नाजिर होना, मौजूद होना, ठीक है। और इसी के तरीके से इनके दूसरे उलमा ने ये बात कही है, और सनाउल्लाह अमृतसरी ने तफसीर सनाई में हुआ माऊम आइना माकान, इसकी तफसीर में लिखते हैं अल्लाह बजाते खुद, बजाते इल्म खुद हर चीज पर हाजिर नाजिर है, हर चीज पर कायम है, यानी जात के एतबार से इन्होंने माना है। और दूसरे इनके अब्दुल हकीम सियाल कोटी जो हैं दूसरे आलिम कहते हैं यकीन करो अल्लाह ताला हाजिर और नाजिर और मौजूद है। और ये दूसरी चीजें हैं कि वो सारी जगह खलतो जलवतो दोनों में हाजिर और नाजिर मौजूद है। इनके और से दूसरे सारे अकाबिर यही मानते हैं। अब रईस अहमद नदवी हुए, ठीक है, ये सब कहते हैं हाजिर और अल्लाह ताला हर जगह हाजिर और नाजिर है। और ये जाकिर गैर मुकल्लिद साहब कहते हैं कि ये अकीदा जहमिया का है। तो ये इसके मुकौल के मुताबिक इनके सारे उलमा का इत्तफाक है कि अल्लाह ताला हर जगह हाजिर और नाजिर है, तो सारे का अकीदा जहमिया का अकीदा हुआ, ठीक है। और दूसरी बात है कि ये अगर अपने उलमा को जहमिया का अकीदा मानता है तो उनको जहमी क्यों नहीं बोलता? भाई उनका जब अकीदा है तो जहमी क्यों नहीं बोलता? और दूसरा इसने ये कहा है कि जब कोई ताबई की बात आती है तो ताबे ताबईन के मुकाबले पे ताबई की बात मानी जाएगी, और जो बड़ा मुहद्दिसीन के मुकाबले पे छोटी मुहद्दिस की बात नहीं मानी जाएगी, बड़े की मानी जाएगी। तो ये वसूल की ये दलील दे, ये कहाँ पे वसूल इसने पढ़ा है, इसकी ये मुझे दलील दे दे कि छोटा और बड़ा कैसे ये पैमाना नापता है, और किसने इसको बताया कि छोटा मुहद्दिस फला है, बड़ा फला है, और बड़े की बात मानी जाएगी, छोटे की बात नहीं मानी जाएगी। ये मुझे कोई दलील से बात नहीं कर रहा। चलो आपका टाइम हो गया, 2 मिनट के ऊपर आपने बोला है, अभी रुक जाओ ना। ये देखा सामाइन, इन्होंने अपने अकीदे की वजाहत नहीं की। मैंने पूछा कि भाई आप ये बता देते, हाँ मेरा यकीदा है जंग की चोट पे, नहीं बताए। कैसे बताएंगे? मनगढ़ंत अकीदे ये हमारी तरफ आते हैं। और मैंने इनको बताया कि भाई इस पर इजमा है, इजमा आ जाने के बाद भी ये लोग नहीं मानेंगे। और ये कैसे मानेंगे भाई? इजमा के खिलाफ भी इनका अकीदा चले जाए, इनके इमाम के खिलाफ भी इनका अकीदा चले जाए, तब भी ये अपनी मनगढ़ंत तकलीद से अकीदे घड़ना और उसको अहले सुन्नत वल जमात की तरफ मंसूब करना नहीं छोड़ेंगे। जैसा अकीदा जैसा इमाम वैसा मुकल्लिद। अब वो पता नहीं, इमाम अबू हनीफा तो वैसा अकीदा नहीं रखे, लेकिन इन्होंने एक बात कही तफसीर सनाई में सूरह हदीद की आयत नंबर 4 के ज़िमन में, माअज़ल्लाह। मैं यहाँ पर पढ़ के सुना देता हूँ तफसीर सनाई में कि यहाँ पर तफसीर क्या कर रहे हैं। वही है अल्लाह जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में 6 मुद्दत में पैदा किया। इस मुद्दत का पूरा इल्म अल्लाह को है, फिर सारी मखलूक पर हुक्मरा हुआ जैसे हुकूमत उसके शान और शान के लायक है। इस खालिक कायनात का इल्म इतना वसी है कि जो कुछ ज़मीन में और अज किस्म बारिश या बीज वगैरह दाखिल होता है, इस वजूद इसे से
از قم سبز وغیرہ نکلتا ہے اس کو بھی، اور جو آسمان کی طرف سے ہے از قم بارش وغیرہ اترتا ہے اس کو بھی، اور جو کچھ اس کی طرف سے نازل ہوتا ہے اس کو بھی، اور جو بھی غرض سب جانتا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ کیا کہا؟ چھوٹی موٹی سب باتوں کا، سب چیزوں کو اس کے علم نے احاطے میں لے رکھا ہے، اور کمال اس کا یہ ہے کہ وہ باوجود وحدہ لا شریک کے تمام جہاں کو وہ تم سے دور نہیں ہے۔ علم کے اعتبار سے دیکھو کتنا واضح طور پر بتا رہے ہیں یہاں پر۔ تم جھوٹ بول کے کہہ رہے ہو کہ تفسیر ثنائی میں سورہ حدید کی آیت نمبر 4 کے ضمن میں انہوں نے ذات کے اعتبار سے کہا معاذ اللہ رب العالمین، جھوٹ بولا تم نے پہلے تو، اس کے بعد آپ نے جو ہے جتنے بھی علماء کا نام لیا، اور میں آپ کو بارہا یہی مطالبہ اور یہی آپ کو جو اصول ہے نا، جب ارے اتنا جلدی تم 2 منٹ بولے یار، 2 منٹ میں تمہارا وقت ختم نہیں ہوا۔ اچھا ارے سنو تو صحیح یار، اتنا جلدی کہاں مانگے؟ آپ نے جو نام لیا تفسیر ثنائی کا، سنو اب اس کا جواب تو سنو۔ میں تو تفسیر پڑھ رہا تھا جھوٹ آپ کا ثابت کرنے کے لیے کہ اس کے اندر ذات ہے ہی نہیں، انہوں نے کہا ہی نہیں۔ اب آپ نے کہا کہ چاہے تفسیر ثنائی، سامعین میں یہ آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ تفسیر ثنائی امام ثناء اللہ امرتسری کا مقام، ارے پھر بیچ میں نہ بولو یار، تم بیچ میں آؤ گے تو 3 منٹ بھی ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ 2 منٹ پہ مجھے رکو یار، مجھے 2 سیکنڈ دے دو، بس 2 سیکنڈ مجھے دے دو۔ سامعین انہوں نے کیا نام لیا تھا؟ تفسیر ثنائی کا، اور بھی دیگر حدیث عالموں کا نام انہوں نے لیا۔ تو انہوں نے کیا کہا اس کے اندر کہ یہ عالم تمہارے، ہم کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ جہمیہ کا عقیدہ کو مانتے ہیں، تو امام احمد کے مقابلے اہل حدیث کا بڑا عالم ہو، وہ ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ابھی دیکھ تو اصول خراب کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہلو بھاگ گیا کیا؟ چلو بولو، میں تمہارے بیچ میں نہیں بولا، تم پھر میرے بیچ میں آتے جا رہے ہو۔ یہ ذاکر بولتا ہے، اتنا بڑا جھوٹا مکار ہے، یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ بجاتے خود کا لفظ نہیں ہے، یہ تفسیر ثنائی میں، تفسیر ثنائی جلدی اسکرین شاٹ ڈالو میرے کو۔ ہاں ایسا ڈالو میرے کو، میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ ہاں ماشاء اللہ چلو، ہاں چلو جلدی پڑھ کے ڈالو۔ تو گروپ میں بھی ڈال دیا ہوں، اور یہ ڈالو ابھی، میں پڑھ کے سناتا ہوں نا، تم کو ڈر لگ رہا ہے کیا؟ جلدی ڈالو، میں سناتا ہوں اس کو۔ ابھی چپ رہنا، 2 منٹ۔ ہاں جلدی 2 منٹ لے لو۔ لیکن میں بتا رہا تھا سامعین کہ امام احمد بن حنبل چپ رہا تو میں بھیج رہا ہوں، کے مقابلے میں کوئی نہیں آئے گا الحمدللہ۔ کتنا جھوٹ مکاری کیا ہے ابھی سب پتہ حدیث عالم ہو۔ ارے تم پہلے اپنے ڈالنے میں رہو نا یار، تم سینڈ کرنے میں رہتے ہی وقت برباد کر رہے ہو۔ چاہے وہ اہل حدیث کا عالم ہو، بریلوی عالم ہو، چاہے وہ دیوبندی عالم ہو، کوئی مقابلہ نہیں کر پائے گا امام احمد بن حنبل کا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، امام احمد بن حنبل سے تیرا عقیدہ غلط ثابت کر دوں، امام احمد بن حنبل سے ہی تیرا عقیدہ غلط ثابت کر دوں، یعنی تو اللہ پر ہے، اللہ پر ہے، یہ تیرا عقیدہ غلط ثابت کر دوں، تیرا عقیدہ تیرا رد ثابت کر دوں امام احمد بن حنبل سے، ثابت کرو کر دو۔ چلو ٹھیک ہے، ثابت کر دیتا ہوں۔ اسی پہ تو مان لے گا عقیدہ نا، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، مان لے گا نا کہ تیرا عقیدہ غلط ہے، سناتا ہوں نا، نہیں تو مان لے گا تیرا عقیدہ غلط ہے۔ ہاں اللہ عرش پر عقیدہ غلط ہے، ارے تیرا عقیدہ یہ جو ہے یہ غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اس پر ہے، یہ عقیدہ میں غلط ثابت کرتا ہوں۔ ابھی یہ پڑھ عبارت پڑھ، یہ میں نے بھیجا ہے، یہ عبارت پر کیا لکھا ہے، یہ چل تو بول رہا تھا میں جھوٹ بول رہا ہوں، ابھی تو جھوٹا ثابت ہوگا، چل پڑھ۔ یہ کیا ڈالا تم نے بھائی؟ ہاں پڑھ، پڑھنا، 4 اسکین ڈالو، چاروں پڑھ۔ اس کی جلد نمبر 1 ہے، جلد نمبر 1 میں سورہ حدید آتی ہے۔ کون سا جلد نمبر 1 ہے اس میں؟ کون سا جلد نمبر 1 ہے؟ فتاوی ثنائیہ، یہ تفسیر ہے، یہ تفسیر ثنائی نہیں دکھ رہا ہے، چشمہ لگا لے اچھے سے، چشمہ لگا لے موٹا دوربین والا۔ کیا ہے یہاں پر یہی؟ ہاں بتاؤ۔ تفسیر ثنائی کو دیکھ رہا، فتاوی ثنائیہ پڑھ رہا ہے، گامڑ کہیں کا۔ چل ادھر، فتاوی ثنائیہ کو تفسیر ثنائی سمجھ رہا ہے۔ نہیں تم نے یہاں پر کیا جھوٹ بولا؟ چل اللہ بچاتے خود نہیں لکھا ہے، چل بتا۔ آپ نے کیا کہا؟ سورہ حدید، یہاں پر کیا ہے؟ سورہ مجادلہ۔ ایک جھوٹ تمہارا یہ ہو گیا۔ اب چلو میں نکالتا ہوں اس کا، میں نے سورہ حدید بولا تھا، لعنت اللہ علی الکاذبین، میں سورہ کا کوئی نام ہی نہیں لیا،
ये झूठा मक्कार। मैं आयत खाली पढ़ा हूँ, सूर्य का नाम नहीं लिया, क्या झूठ बोलता है यार। हाँ चलो, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, आमीन बोल। आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन। अभी तुमने बताया, चलो सूरह मुजादिला की आयत नंबर 7। अरे पढ़ेगा कि गूंगा हो गया? मैं पढ़ूंगा ना, तुम क्यों इतना बड़बड़ कर रहे हो? पढ़ के बता, चल पढ़ के बता। बोलता है झूठ, मैं बोल रहा, चल पढ़ के बता। निशान मारा हुआ है, पढ़। ये जो तफसीर सनाई है ना भैया, हाँ, ये तफसीर सनाई में आपने जो इसके अंदर लिखा है, हमारी एक बहुत मोतबर वेबसाइट है जिसको आप जानते हो। ये पढ़ इबारत, अभी भाग मत, अभी तूने मांगा है ना इबारत, ये इबारत पढ़, अभी इबारत पढ़, भाग नहीं इधर, भाग रहे नहीं इधर उधर भागना, अभी इबारत पढ़। तुमने क्या मांगा? तफसीर सनाई मांगा कि नहीं? तफसीर सनाई मांगा कि नहीं? हाँ तो ये पढ़ ना, वही तो पढ़ रहा हूँ, फिर भेजा हूँ, वो पढ़ पहले। बड़ कर रही है यार, पढ़, सफा नंबर बता पहले और पढ़। शामिला का नाम सुना है आपने? अरे यार घामड़ कहीं के, जो तूने तफसीर अभी मंगवाया था, यहाँ पर मंगवाया था अभी पढ़ने के लिए, तूने कहा स्कैन भेजो तो पढ़ेगा, अभी क्यों इधर उधर भाग रहा है? आसमान और जमीन की। अरे ये पढ़ तफसीर सनाई पढ़। इसके गले में अटक गई है ये तफसीर, ये नहीं पढ़ेगा, मैं पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है अल्लाह बजाते खुद और इल्म, खुद हर चीज और हर काम पर हाजिर है। हाँ, इल्म के साथ है ना, खुद इल्म के साथ। अरे खुद बजाते खुद और इल्म दोनों, बजाते खुद और इल्म दोनों, ये देखो मक्कारी कर रहा है। बजाते खुद इल्म दोनों के एतबार से अल्लाह इल्म के साथ है, इल्म के साथ है, बजाते खुद लिखा है, बजाते खुद। अरे अल्लाह बजाते खुद, इसका क्या? ये देखो मक्कारी कर रहा है, ये भागा, ये तेरी बेइज्जती बहुत होगी। चल कबड़ा बस, तेरी आगे मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये पूरे अल्फाज पढ़, पूरे अल्फाज अल्लाह से पढ़, अल्लाह से। अल्लाह बजाते खुद, तुमने अल्लाह बजाते खुद पढ़ कि नहीं पढ़ेगा तू? अल्लाह बजाते खुद पढ़, पूरे पढ़, शुरू से पढ़ाओ, मन घड़ा तकलीफ बंद कर। नहीं, अल्लाह बजाते खुद, ये क्या लिखा है? आप लोग ये देख लो, आप ये अल्लाह बजाते खुद पढ़ ही नहीं रहा है डर के मारे। यार वो है ही नहीं तो कहाँ से पढ़ूं? अच्छा ये नहीं, अल्लाह बजाते खुद लिखा नहीं है? मैं पढ़ रहा हूँ ना, सुनो तो सही। नहीं, ये नहीं लिखा है, अल्लाह बजाते खुद नहीं लिखा है। तुम लोग नहीं जानते हो कि जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीनों में। अरे ये पढ़ यार, ये तफसीर पढ़, ये तफसीर पढ़। यहाँ लिखा है कि नहीं अल्लाह बजाते खुद? ये लिखा है कि नहीं लिखा है? अभी आपका मुंह अगर देखो इसका बेचारे का अटक गया है, इसके गले में अटक गई है ये तफसीर। पहले तो बोल रहा था मैं झूठ बोल रहा हूँ, बजाते खुद नहीं लिखा है। अभी ये बजाते खुद नहीं लिखा है, बजाते खुद नहीं लिखा है। अब सुनो झूठ कैसे है, बजाते खुद नहीं लिखा है, बोल। बजाते खुद लिखा है कि नहीं लिखा है? क्या बजाते खुद लिखा है कि नहीं लिखा है? अगर ऐसे ही, अरे यार बजाते खुद लिखा है कि नहीं लिखा है? तो फिर फोन कट करूंगा तुम्हारा। नहीं भागेगा ही, लेकिन ये नहीं पड़ेगा, बजाते खुद नहीं लिखा है। जब तुम बोल रहे मैं अल्लाह बजाते खुद लिखा है कि नहीं लिखा है? खामोश हो जाओ ना। नहीं लिखा है कि नहीं लिखा है, ये बता दे पहले। अल्लाह बजाते खुद लिखा है कि नहीं लिखा है? लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, बोल आमीन, आमीन बोल। झूठ लिखा है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, आमीन बोल, आमीन बोल। चलो अब मैं तुम्हारे आमीन बोल, आमीन बोल। नहीं पहले आमीन बोल। लानतुल्लाहि अलल का, अगर अल्लाह बजाते खुद नहीं लिखा है, ठीक है बोल। अगर अल्लाह बजाते खुद लिखा है तो तुझ पर अल्लाह की लानत। तो नहीं होगा। नहीं गलत, झूठ क्यों बोला? ये अल्लाह बजाते खुद नहीं लिखा है, खत्म हो गया ना, लानतुल्लाह भेज दिया ना, फिर नहीं तो आमीन कहाँ बोला? लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, आमीन बोल, आमीन बोल ना, नहीं हुआ तेरा, आमीन बोल। आमीन बोल चुका हूँ, मुकल्लिद को समझ में नहीं आया तो आमीन, आमीन सुम्मा या रब्बुल आलमीन। यहाँ पर पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि चाहे वो अहले हदीस आलिम हो, पहले ही बता रहा हूँ, कोई सुन ले, चाहे वो बरेली आलिम हो, फिर वो देवबंदी आलिम हो या कोई भी आलिम हो, ये इतना बड़ा झूठा मक्कार है। इस स्कैन के साथ मैं लगाऊंगा तब तेरी झूठ मक्कारी समझ में आएगी। इस स्कैन के साथ मनगढ़ंत अकीदा साबित हो रहा है ना, अब ऐसे ही बड़बड़ करेगा। तुम्हारे अकाबिर का मनगढ़ंत अकीदा है वो, इसके जो अकाबिर हैं ये नजीर हुसैन देलवी, सनाउल्लाह आमिर सरी, इसका अकीदा मनगढ़ंत था। वाह भाई वाह। चल बोल बोलते
पढ़ चालू करता जा सर। फतावा सनाइया पढ़ जरा, फतावा सनाइया पढ़ बड़ाई। चलो सामईन, इस आयत के ऊपर अहले सुन्नत वल जमात का इजमा है, और जहाँ पर इजमा आ जाता है ना, फतावा सनाइया पढ़, चारों इबारतें पढ़ना। तू बोला था कि तू पढ़ेगा, मैं पढ़ता हूँ। चल तू नहीं पढ़ेगा, मैं इजमा को नहीं मान रहा यहाँ पर। इजमा कुछ है ही नहीं, इजमा भी नहीं है, न कुरान से साबित है, न हदीस से साबित है, कहीं से साबित नहीं है। चल इसका मतलब है तेरे अकाबिर इजमा के खिलाफ है। इजमा यानी कुरान और हदीस से तू मान लिया, इसने मान लिया कि कुरान हदीस से साबित नहीं है। चल इजमा से साबित कर, चल इजमा से साबित कर, इजमा से बेस दलील, इजमा से दलील दे, इजमा से। यानी कुरान और हदीस से साबित नहीं है, तू मान लिया है, अब इजमा से साबित कर, इजमा से साबित कर। ये जाकिर जो है गैर मुकल्लिद मान लिया कुरान हदीस से, इसका अकीदा साबित नहीं है, इजमा की बात कर रहा है। चल इजमा से साबित कर, स्कैन भेज। अब खामोश रहेगा कि नहीं? फोन काट कर भेज। देखो तू भागेगा मगर दलील नहीं देगा। अगर ये 2 मिनट में ऐसे ही करेगा ना तो फोन काटूंगा इसका। इस अभी तूने कहा ना, मैं इसको बोलने का मौका कहा इजमा से साबित है, इजमा की दलील भेज, इजमा की दलील। ये बोलना ही, ये मुझे बोलने ही नहीं दे रहा है। अरे बोलने की बात नहीं है, दलील देने की बात है। तूने बोल दिया इजमा से साबित है, तो इजमा की दलील दे। ये बताओ, ऐसे इजमा की दलील दे। जिसका अकीदा जहमिया का है उसे कौन? देखो सनाउल्लाह अमृतसरी का अकीदा जहमिया का है, नजीर हुसैन देलवी का अकीदा जहमिया। हाँ खुश हो रहा है, यानी ये जहमी है, तो बोल ये सारे जहमिया अकीदा गुमराह है। बोलते जो। हाँ तो बोलना, ये गुमराह है। अभी खामोश रहो, मैं बोलता हूँ सामईन। अभी मैं जवाब देता हूँ इनका। सामईन कराम, आप लोग खुद अहले इल्म है, तो इस बात को और से इजमा की दलील दे, बीच में आ रहे हैं मनगढ़ंत तकलीफ की दलील दे, बीच में ना आए। मैंने बारहा कह रहा हूँ कि ये बार बार बीच में आके मनगढ़ंत तकलीफ का जलावा निकाल ले रहे हो। चल ठीक है, चल। और वादे के खिलाफ जा रहे हो कि भाई जब मैं बोलूंगा तो तुम ना बोलोगे। मैं तो तुमको मौका देता जा रहा हूँ। मांगेगा ना तो इजमा का नाम लिया तो मैं दलील नहीं मांगूंगा। इनके मुकाबले में ये किसको पेश कर रहे हैं? इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब रद्द अला जहमिया। इमाम अहमद के मुकाबले में इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का। अरे बीच में ना बोलो यार, तुम फिर पढ़ क्या बीच में ना बोल, बीच में ना बोलो, मैं तुमको मौका दूंगा ना बोलने का। बड़बड़ करना है, दलील नहीं देना है, तेरे बड़बड़ करेगा दलील नहीं देना। अरे तो तुम खामोश रहोगे अंधभक्त? अरे अंधा मुकल्लिद जो है दलील क्यों नहीं देता? अंधा मुकल्लिद इनका अकीदा क्या निकला कि अल्लाह की जात हर जगह मौजूद है। इस पर मैं वजाहत ले रहा था। अब ये कहाँ चले गए अपनी वजाहत दिए बगैर? इनको सनाउल्लाह अमृतसरी याद आ गए, इनकी वजाहत में इनको याद आ, इनके उलमा याद नहीं आ रहे। और मैं बारहा कह रहा हूँ कि भाई इमाम अहमद के मुकाबले में तुम इन उलमा को ला रहे हो, इमाम खुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह के मुकाबले में, इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह के मुकाबले में। एक भी दलील नहीं दे रहा है, फिर बीच में खाली बड़बड़ कर रहा है। दलील देना यार, इजमा की दलील तूने कहा, इजमा की दलील। इस आयत के ऊपर इजमा है अहले सुन्नत वल जमात का कि अल्लाह ताला यहाँ पर के एतबार से नहीं, इल्म कुदरत के एतबार से हमारे साथ है। दलील दे, दलील। ये तो अल्लामा जहबी से मैं नकल करता हूँ तेरे अकीदे का। जहबी नहीं होता है वो, जहबी जहमिया आएगा, तुम जहबी बोलते हो उनको माज़अल्लाह। अच्छा क्या है? जहबी नहीं है, क्या है? जहबी नहीं, क्या है? क्या है? जीम से नहीं है वो, जाल से है ना, जहबी है वो। जहबी का जाल पढ़ रहा है कि जवाद पढ़ रहा है? वो जवाद है, ये जवाद पढ़ रहा है गामर कहीं का। जाल को जवाद यार, वो जवाद भी नहीं है वो, ना वो जा है वो, जवाद पढ़ रहा है। तू पढ़ रहा है, इधर सुन। देख जब मैं इबारत पढ़ने जाता हूँ तो इसकी हालत खराब हो जाती है। सुन गामर होता है, सुन, तुझे खुद नहीं मालूम है। देखो सुन, ये अकीदा की वजाहत के अभी आलामिन नुबला में अल्लामा जहबी करने के लिए फरमाते हैं। ये देखो पढ़ने नहीं दे रहा है इबारत, डर रहा है, डर रहा है। इबारत पढ़ने दे दो पहले। कुल तो सवाबुल कफ अन इतलाकी जालिका इजलम याति फीही नस्सुन वलौ फरजना अन्नल माना सहीहुन फलैसा लना अन नतफहु बिशैइन लम याजन बिहिल्लाहु खौफन मिन अयद खुलल कल्ब शहीन मिन बिदअती अल्लाहुम्मा इफिज अलैना ईमानना। ये फरमाते हैं अल्लामा जहबी जो अल-मुतवफ़्फ़ा 748 हिजरी के हैं। कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि सही बात यह है कि बेजात ही जो जात का लफ्ज है उसको इस्तेमाल ना करें, ठीक है, क्योंकि ये नस में यानी कुरान में वारिद नहीं है, ठीक है। अगर बिलफर्ज अगर ये जाति का माने दुरुस्त भी हो तब भी
ہم ایسا لفظ منہ سے نہ نکالیں جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے، تاکہ دل میں بدعت داخل نہ ہو۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں یہی علامہ موقع دیا نا، ابھی دیکھو خاموش مجھے 2 منٹ پڑھنے دے۔ وقت ذکرنا ان لفظ بجاتی لحاجت الیہ وہی تسغفر النفوس وترک اولا واللہ عالم۔ کہتے ہیں کہ ہم نے اوپر بیان کر دیا کہ لفظ ذات کی یہاں کوئی ضرورت نہیں، یہ تو دلوں کو فساد عقیدہ کی طرف لے جانے والا ہے۔ اور یہ اس کا عقیدہ جو ہے علامہ ذہبی خود کہتے ہیں کہ یہ فساد، دلوں کے فساد، ایمان کے فساد کا عقیدہ کی طرف ہے۔ اور دوسرا فتح الباری میں علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں یہ اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو جن کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہیں۔ یہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں، عبارت پڑھنے دے، کہتے ہیں فیہ رد علی من زعم انہ علی العرش بذاتہ، اس میں ان لوگوں کے عقیدے کا رد ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے۔ دیکھو 3 منٹ آپ نے لیا ہے، نہیں 2 منٹ لیا، چل مجھے بولنے ہی نہیں دے رہا، اور پڑھوں عبارت، چل ضرورت نہیں ہے تم عبارت پڑھنے کی، اب تمہارا من گھڑت عقیدہ یہ دیکھو فقہا محدثین کا عقیدہ بولتا من گھڑت عقیدہ، استغفر اللہ۔ میں نے آپ نے پہلے تو ایک تفسیر اشرفی، ان کے اشرف علی صاحب کی تفسیر ہے، یہ کیا کر رہے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو کیا وہوا معکم اینما کنتم کی یہ تفسیر کیا کرے، یہاں قریب کے معنی کیا ہے؟ ارے بھائی یہ بات اس پہ نہیں ہو رہی ہے، ہوا معکم اینما کنتم کی، میں تم سے تفسیر پوچھ رہا ہوں، میں تمہارے عقیدے کی دلیل پوچھ رہا ہوں، جو تم نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے صرف عرش پر ہے اور کہیں نہیں ہے، اس کی دلیل دے، ٹھیک ہے وہ دلیل پوچھ رہا ہوں۔ یہ ادھر ادھر کی بات کیوں کر رہا ہے؟ ادھر ادھر کی بات نہیں ادھر ادھر کی بات ہی کیوں کر رہا ہے تو؟ اور دوسری بات، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر کو تو حجت مانتا ہے، اس کا مطلب ہے قرآن و حدیث، نہیں تو حجت مانتا ہے تو حجت ماننے لگا۔ اب میں یہ آیت کی تفسیر میں تھوڑی تم سے پوچھ رہا ہوں، ہوا معکم والی آیت کی میں تفسیر تم سے پوچھ ہی نہیں رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تم سے میں پوچھ رہا ہوں، تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، تو دلیل دے اپنے عقیدے پر، تیرا جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے صرف عرش پر ہے اور کہیں نہیں ہے، اس کی دلیل دے، تو ادھر ادھر کیوں بھاگ رہا ہے؟ اس کا رویہ دیکھ لے، یہ مجھے بولنے نہیں دے رہا، رویہ کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، تو ادھر ادھر کیوں بھاگ رہا ہے؟ اپنے عقیدے کی دلیل کیوں نہیں دے رہا ہے؟ ابھی تم نے کہا نا تیرا عقیدہ اجماع سے ثابت ہے، قرآن حدیث سے ثابت ہے، اس پہ آ ہی نہیں رہا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ ہم اس کی تفسیر تو تم سے مانگ ہی نہیں رہے ہیں، ہوا معکم اینما کنتم، اس کی تفسیر تو تم سے مانگے ہی نہیں ہے، اس کی تفسیر کیوں تم بتا؟ آپ نے تو کہا جھوٹ کہا وہاں پر، تو پھر جھوٹ بالکل نہیں ہے، ہم نے جھوٹ تم کو اس کے میں نے بھیج دیا، جھوٹ کون سی ہے یار؟ میرا ٹائم تو بیچ میں کیسے آ رہے آپ؟ میرے وقت میں بیچ میں آ کے کیا کرنا چاہ رہے ہو آپ؟ بیچ کا کیا مطلب ہے؟ بیچ کا سے کیا مطلب ہے؟ پھیلانا چاہ رہے ہو، منگڑت تخلید کرنے سے فساد ہی ہوگا۔ یہ علامہ ذہبی کے مطابق اس کا عقیدہ فساد ہو گیا، اس کا عقیدہ فساد ہو گیا، ہاں ذات کے اعتبار سے جو بولا ہے، لیکن اس کی منگڑت تخلید کا جنازہ نکل رہا ہے، اسی لیے مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے۔ اتنا ڈر اور خوف تو ہونا چاہیے اہل حدیث اہل توحید کا، ماشاءاللہ سے۔ تو بدعتی ہے تو کیا اہل حدیث ہے؟ ان کے عالم سے میں نے بتایا، اس نے جو ہے تفسیر صنائی سے بتایا نا، تو میں بھی اس کے عالم سے بتایا۔ اب یہ کیا کرے گا کہ اس کو کیا بولے گا؟ اب یہ دوسرا تفسیر جلالین دیکھ لے، تفسیر جلالین میں وہوا معکم اینما کنتم کی یہ تفسیر کیا کرے؟ اللہ علم کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے۔ تفسیر جلالین 2 تفسیر بتایا، ایک تفسیر کیا بتایا تفسیر اشرفی، ایک تفسیر جلالین، اور ایک تفسیر ہے دیکھیے یہاں پر، یہ کیا ہے کتاب اسماء و صفات میں، اسماء و صفات میں یہاں پر کیا بتا رہے؟ وہوا معکم کی تشریح میں کیا فرماتے؟ مختال بن حیان رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ وہ عرش پر ہے، اس کا علم ان کے ساتھ ہے، بتا دیا نا، اللہ عرش پر ہے، اس کا علم ہمارے ساتھ ہے۔ کس کی تفسیر ہے؟ کتاب اسماء و صفات،
इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। भेज अभी। हाँ मैं भेज दिया, पढ़ लो, तुम्हारे व्हाट्सएप पे पढ़ो, तुम्हारे व्हाट्सएप पे पढ़ो, अभी भेजा हूँ, पढ़ के देखो, मैं गलत पढ़ रहा हूँ तो देख लेना, चेक कर लेना। नहीं पढ़ भाई, चलो तफसीर तबरी है। नहीं ये पर अस्मा व सिफात की बात किया है ना, नहीं कहाँ पढ़ा? अरे मिस्काल बिन हय्यान की तफसीर कहाँ पढ़ा? ये इबारत पर व्हाट्सएप देख लो, झूठ बोलता है, देख लो, अभी फिर बीच में आ रही है, झूठ बोलता है, ये झूठ नहीं, ये झूठ बोला, इसने पढ़ा नहीं। इबारत पर अल इस्मा व सिफात की इबारत पर नहीं इबारत पढ़ना, नहीं पढ़ के बता इबारत। ये देखो ये अल इस्मा, सुनो मैं पढ़ देता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ, नहीं तूने झूठ बोला इसमें, नहीं तू झूठ बोला इसमें यहिया बिन सईद, इसमें यहिया बिन सईद सुनना, जब मैं बोलता हूँ तो खामोश, नहीं गलत बात है, ये बोलता है तो मैं खामोश, 3 मिनट तक खामोश रहा, ये इसका ये इसमें मुकातिल, इसकी सनद जयीफ है जो भेजा है, इसकी सनद जयीफ है, सुनना ग्रामर का दुकान चालू कर दिया। ये मेरा वक्त चल रहा, मैं इसको पहले ही बताया कि भाई मेरा वक्त चल रहा है, मुझे 3 मिनट तक बोलने, इबारत तो पढ़ी नहीं रहा है, नहीं पा रही है, पहले ही इबारत में तुम्हारा जनाजा निकाल दिया। इबारत कहाँ पढ़ा है? इबारत नहीं पढ़ा। क्या कहा हुआ माकूम की तफसीर में, वहाँ तो उन्होंने इल्म मुराद लिया, तुम्हारे आलिम ने इल्म मुराद लिया, अब क्या करोगे? अब सर पे मार लो। मैंने तुमसे तफसीर की, इन्हें इसमें लिखा है कि अर्श पर नहीं है अल्लाह ताला, फिर बीच में ना लिखा है कि अर्श पर है, बोलोगे तो फोन काटूंगा मैं, अगर ऐसे बीच में बोलोगे तो फोन भागने की बात के साथ 3 मिनट दिए, ये डर के साथ जब तुम इबारत पढ़ रहे थे तो मैंने तुम 3 मिनट दिए, और जैसे ही मैंने तफसीर अशरफी पढ़ी तुम्हारा जनाजा निकल गया, मनगढ़ंत तकलीद का चालू हो गई तकलीद तुम्हारी। अब तफसीर तबरी पढ़ लीजिए, मैं 2 तफसीर से साबित किया, एक तफसीर इनका अशरफी जो हुआ माकूम की तफसीर में ये इल्म मुराद लेते हैं, अल्लाह ताला इल्म के एतबार से हमारे साथ है, जात तो नहीं है यहाँ पर। उसके बाद में तफसीर जलालैन से भी साबित किया कि अल्लाह ताला इल्म के एतबार से हमारे साथ है। अब तफसीर तबरी में इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह वहुवा माकुम ऐना माकुम तुम के तशरीह एक क्या करते हैं कि लोगों तुम गवाह हो, तुम पर अल्लाह तुम पर गवाह है, तुम जहां भी हो वो तुम्हें जानता है, वो तुम्हारे आमाल और वो तुम्हारा ठिकाना वो अपने 7 आसमानों से ऊपर अर्श पर है। ये देखो कितने साफ बात है। उसके बाद में इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर से बात कर रहा हूँ मैं। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह वहुवा माकुम ऐना मा कुंतुम की तफसीर में क्या कह रहे हैं, यानी अपनी कुदरत और सल्तनत और इल्म के जरिए हमारे साथ है। अब ये बोलो क्या बोलेंगे, तो 4 तफसीर से साबित किया कि अल्लाह ताला हमारे साथ है, मतलब इल्म के एतबार से साथ है। सुनो तो इसका मैं जवाब सुन ले, तफसीर से बता दो, भागना मत, जवाब सुनना। चलो जवाब इसका परिचय सुनो। सुनो, ये तफसीर ला रहा हुआ माकुम ऐना मा कुंतुम, हमने इसकी तफसीर इससे पूछा ही नहीं है। इसमें यह लिखा है कि यहाँ कुर्ब के माने में है, इल्मी के हैं, कुर्ब जिस्मी के नहीं है। ठीक है, सुभान अल्लाह। सुनो पूरी बात, बहुत सुना, सुभान अल्लाह बोला, उसमें क्या बोला, बीच में टोकना न। सुनो तो ये लिखा है, तुम खामोश, ये इसकी तफसीर की बात ही नहीं हो रही है। दूसरी इसमें कहीं नहीं लिखा है कि अल्लाह ताला सिर्फ अर्श पर है, क्योंकि ये अकीदा इसका ये बातिल हो गया, इसमें ये चीज लिखी नहीं है। ठीक, अल्लाह ताला सिर्फ अर्श पर है। ठीक है, और तफसीर जमालैन में भी वही है, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि अल्लाह ताला अर्श पर है। और दूसरा इसने अल इस्माए व सिफात की किताब दी है, जो अल्लामा बैहकी मुहद्दिस गुजरे हैं, उनकी किताब है। तो इन्होंने निशान मारा है, और इसमें एक रावी जो है, इसमें खुद हाशिये में लिखा है, एक रावी जो है मुकातिल बिन हय्यान है। ठीक है, और वो ज़ईफ रावी हैं। ठीक है, और ये ज़ईफ रावी से अपना अकीदा साबित करता है। ये इसकी सनद में ज़ईफ रावी है, तो आप समझ सकते हो अकीदा ये ज़ईफ रिवायत में है, ये ज़ईफ रावियों से अपना अकीदा, ठीक है, ये साबित करता है। दूसरा तफसीर तबरी की बात ये कर रहा है, तो तफसीर तबरी में भी ये कहीं नहीं लिखा है कि अल्लाह ताला सिर्फ अब अर्श पर है अपनी जात के एतबार से, और कहीं नहीं है, इसमें कहीं वो चीज नहीं लिखा है। ठीक है, बल्कि दूसरी तफसीर तबरी में इसका रद्द लिखा है, मैं दिखा देता हूँ, सूरे हदीद इसी में है, सफ़ा नंबर 385 में इसमें खुद है,
اس میں خود لکھا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں हुवल अव्वलु क़ब्ल कुल्ल शैइन बगैर हद्दिन کہ وہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز سے پہلے ہے، ٹھیک ہے، بغیر حد کے. اور اس کا عقیدہ ہے کہ عرش اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے ہمیشہ سے. تو اس میں اس کے عقیدے کا رد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز سے پہلے ہے اور بغیر حد کے ہے. اور اس نے عقیدہ گڑا ہے حد کا، یعنی اللہ تعالیٰ کو عرش پر یہ محدود کر دیا. اس نے اللہ تعالیٰ کو عرش پہ محدود کر دیا. اور یہ قرطبی، علامہ قرطبی کی ہے تفسیر قرطبی، اس میں خود لکھا ہے وصفہ بالعلوی والعظمتی لا بالاماکن والجہتی والحدود لأن صفات الالزام وانما ترفع ایدی. تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے علو اور عظمت کے صفات مکانات، جہات اور حدود کے اعتبار سے نہیں ہے کہ وہ کسی مکان میں ہے، کسی جہات میں ہے، کسی حد میں ہے، کیونکہ یہ اجسام کی صفات ہیں. ٹھیک ہے، کس کی؟ چلیے اجسام کا وقت ہو چکا ہے. نہیں میرا وقت کہاں ختم ہوا؟ نہیں میرا وقت کہاں ختم ہوا؟ رک. تو آگے کہتے ہیں کہ اللہ نے مکان کو پیدا کیا، وہ مکان کا محتاج نہیں، وہ مکان اور زمان کے پیدا کرنے سے پہلے ہی اجل میں تھا. ٹھیک ہے، اس کا کوئی مکان زمان نہیں تھا. اب بھی وہ اسی طرح ہے جس طرح پہلے تھا، یعنی عرش پیدا ہونے سے پہلے جہاں تھا وہ بھی ابھی بھی وہی ہے. لیکن یہ کہہ رہا نہیں عرش پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں اور تھا پہلے، بعد میں عرش پر منتقل ہوا. یہ اس کا عقیدہ علامہ قرطبی سے ہی اس کا عقیدہ غلط ثابت ہو رہا ہے. اور کافی ہو گیا بھائی، کتنا بولو گے بولو. ابھی میں خاموش رہا، سامعین دیکھا آپ لوگوں نے، میں خاموش رہا. میں یہ تفسیر کی بات کیوں لایا؟ کیونکہ انہوں نے تفسیر ثنائی کوٹ کی، اور تفسیر ثنائی میں اس کے اندر میں کہہ رہا ہوں کہ پرنٹنگ مسٹیک ہے. اور ہماری جو ویب سائٹ ہے ماشاءاللہ اہل حدیث کی، اس کے اندر ماشاءاللہ میں نے بتا دیا کہ وہاں پر ذات کا ذکر نہیں آیا. میں نے بتا دیا پڑھ کے ماشاءاللہ. اب وہ اس کے اندر آیا تو وہ تو پرنٹنگ والوں کی مسٹیک ہو سکتی ہے، کیونکہ اندر دوسرے تفاسیر کے اندر جو آن لائن ہے ابھی اس کے اندر تو ذات کا ذکر نہیں ہے. اگر ہوتا تو ضرور پیش کر دیتے ان من وان. یہ تو ذاتی تو نہیں ہے یہاں پر. اب ان کے جتنے بھی علماء ہیں یہ ہوا معکوم کی تفسیر میں علم مراد لے رہے، مطلب یہ اندبخت ذات مراد لے رہا. مطلب ان کے علماء کے خلاف ان کا عقیدہ ہے. ان کے علماء کا عقیدہ تو ہمارے مطابق ہے، اور رہی ہمارے تفسیر ثنائی کی تو وہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دیا کہ وہاں پر ذات ہے ہی نہیں، وہاں تو علم ہے. اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہے. اس کے بعد میں ہو گیا. اب میں تو تفسیر قرطبی سے بھی بتا دیا، لیکن یہ ماننے والے کے لیے ایک دلیل کافی ہے. تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے. ابھی میں آپ کو جو ہے سو امام احمد ابن حنبل کی بات بتایا. اب امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات کے مقابلے میں نہ حنفی امام کی بات چلے گی، نہ اہل حدیث عالم کی بات چلے گی، نہ اہل حنفی کا فتویٰ چلے گا، نہ اہل حدیث کا فتویٰ چلے گا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ آج کل کے علماء کی بات بتا رہا ہوں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب رد علی جہمیہ کے اندر یہ کیا کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہم اپنے رب کو کیسے پہچانے؟ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس طرح کہ وہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے اور اپنی مخلوق سے جدا ہے، بول کے بول رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ تو اللہ ہر جگہ مطلب مخلوق میں لا لیے جگہ. خود ہی اپنے جب سے کیا عقیدہ، جب سے دیکھا آپ لوگوں نے کہ انہوں نے جو دلائل پیش کیے، جو انہوں نے وہاں پر اقوال پیش کیے نا، تو اس کے اندر خود ان کے عقیدے کا رد ہے. وہاں پر کیا بتایا گیا کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تب اللہ تعالیٰ، اور ایسی جگہ پہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے تو تم خود حد لگا رہے. ہر جگہ جگہ کیا ہے؟ یہ حد نہیں ہے. ہر جگہ زمین پر جگہ آ گئے، تم خود جو ہے حد لگا رہے. پھر اس کے بعد میں جو ہے سو اللہ عرش کے اوپر ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ، اس کی ان کے پاس میں بھیجا دیا ماشاءاللہ سے. یہ اس کو چیک کر لئیے. یہ کیا کہتے ہیں اس کے اندر کہ اللہ عرش پر بلند ہے اور اپنے علم کے ساتھ اپنے مخلوق کے ساتھ ہے. کتنا واضح لکھا ہوا ہے. امام مزنی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ یہ کھل کے بتا رہے ہیں کہ اللہ عرش پر بلند ہے اور اپنے علم کے ساتھ اپنی مخلوق کے ساتھ ہے. سیم عقیدہ ہے ہمارا. اور اس کا علم تمام امور کو گھیرے ہوئے ہے اور اپنی مخلوق پر اس کا حکم نافذ ہے بول کے بتا دیا گیا. اتنا صاف اور شفاف عقیدہ. اس کے بعد میں پھر صحیح بخاری کے اندر یہ بات ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ بتایا گیا. یہاں پر تو ماشاءاللہ سے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے کروایا ہے. یہ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے ماشاءاللہ سے. تو میں حدیثوں سے اور قرآن کی آیتوں سے دلیل دے رہا ہوں کہ انہوں نے جو عقیدہ گھڑا اور اس پر اجماع ہے. اتنا جلدی کیسے؟ 2 منٹ ہوا ہے. 2 منٹ ابھی رکو اتنا جلدی. 2.5 منٹ ہوا. میں بیچ میں نہیں بولا آپ کے، میں بیچ میں آپ کے نہیں بولا، اسی لیے بولا کہ 2 منٹ نا. تمہارا ٹائم ہو گیا تو مجھے بھی ٹوک دیا. 3 منٹ 3.5 منٹ بولے آپ. جواب نہیں
तो रुको, अभी तुम्हारा जवाब बाकी है, अभी रुको यार। इतना जल्दी क्या भाग रहे हो? मैंने इनसे पूछा था तो यहाँ से वो वजाहत दिए बगैर भाग गए। इन्होंने कहा कि अल्लाह की जात इस जमीन पर भी है, आसमान पर भी है, अर्श पर भी है, हर जगह है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि अभी हर जगह है, तो इसके ऊपर इन्होंने वहां चले गए, ये अपने अकीदे की वजाहत नहीं करे। जब मनगढ़ंत अकीदे घड़ेंगे तो उनकी वजाहत के लिए कितना वक्त हो गया? इनकी वजाहत देने के लिए इनके अकीदे पर मैंने तो सिर्फ, आपने देखा होगा, पूरी ऑडियो सुनी होगी, शुरू में मैंने माशाअल्लाह से अहले हदीस अहले तौहीद का अकीदा साफ और शफाफ है, रोज़े रोशन की तरह आया है। 2 मिनट में माशाअल्लाह से हमारा अकीदे की वजाहत हो गई। लेकिन इनका ऐसा कैसा मनगढ़ंत अकीदा है जो 44 मिनट हो चुका है, लेकिन अभी तक इन्होंने वजाहत नहीं की। मैं इनसे फिर ही पूछ रहा हूँ कि इधर उधर की बात बताने के बजाय अल्लाह ताला की जात इस जमीन पर है, बताओ। इसका जवाब ही नहीं दे रहे हो, खाली बात को घुमा रहे हो, जिलेबी की तरह, तकलीफ की तरह घुमा रहे हो बात को। इसका जवाब दो, और 1 मिनट और 2 मिनट ही गुफ्तगू करो, लंबी बात ना करो। मजबूरन मुझे भी लंबी बात करनी पड़ेगी। हाँ, हो गया हो गया। हाँ। देखो, ये जाकिर साहब ने ये सिर्फ लफाजी किया है, किसी से अपना अकीदा साबित नहीं किया है, ठीक है। इनका जो अकीदा है कि अल्लाह ताला जात के एतबार से अर्श पर है, सिर्फ अर्श पर है और कहीं नहीं है, उसके अपने इस अकीदे पर एक भी दलील नहीं दिया इन्होंने, न कुरान से, न हदीस से, और न किसी आइम्मा से, कुछ भी नहीं। आप देखे होंगे कोई चीज इबारत नहीं पढ़े, और ये इनकी ज़ईफ हदीसों से सारी चीज नकल होती है, इनकी ज़ईफ हदीसों से, ठीक है। इन्होंने कोई भी अकीदा अपने कौल के मुताबिक बिल्कुल नहीं दिया, और यहाँ वहाँ की बातें करते रहे, जबकि मैं साफ और सही बातें इनको बताया कि अल्लाह ताला जात के एतबार से अल्लामा ज़हबी खुद फरमाते हैं कि ऐसा अकीदा रखने वाला फसाद दिल का फसाद और ईमान के फसाद का है, ठीक है। तो उस पर इसने कोई जवाब नहीं दिया, उसका कोई चीज़ नहीं, इधर उधर की बातें करता रहा, कोई दलील नहीं दिया, खाली बस ये लफाजी करता रहा, ठीक है। और बाकी जात के एतबार से और भी मेरे पास दलील है। ये सही सरा बुखारी है, इब्न बत्ताल जो मशहूर मुहद्दिस हैं, वो खुद ये इन्होंने बताया है कि सुम्मक तलफ़ अहलुस सुन्नह हल इस्तवा सिफतुन जात और सिफात ही। तो इसी तरीके से इन्नल्लाह ताला फ़ेला फ़ेलन समा इस्तवा अलल अर्श ही लजाल का फ़ेला कायमुन बेजात ही ताला लिस्तिहालति क़ियामिल हवादिसी। कहते हैं अहले सुन्नत में से जिसने उलू के माने लिए हैं उसने इस्तवा को सिफत जात ही लिया है और दूसरों ने सिफत फेल करार दिया है, और उनकी मुराद यह है कि अल्लाह ताला ने एक फेल किया जिसकी ताबीर इस्तवा अलल अर्श से की है। ये मुराद नहीं है कि वो अल्लाह ताला अर्श पर जात के साथ कायम है, क्योंकि जाते बारी ताला के साथ हवादिस का क़याम मुहाल है, यानी अर्श तो हादिस है, उसके साथ अल्लाह ताला का क़याम मुहाल है, इससे ये मुराद नहीं है। तो ये खुद रद्द कर रहे हैं इन लोगों ने पूरी बात। नहीं, झूठ ना बोला, झूठ मत बोला करिए, क्यों झूठ बोला? 38 नहीं, झूठ मत बोला कर, नहीं गलत बात है। एक किताब की इबारत पढ़ता हूँ, झूठ पर अल्लाह की लानत बोलो, आमीन बोलो, कुफ्र की मौत मरोगे अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। अभी पढ़ने दे, इबारत पढ़ने दे। ये अल्लामा जरकानी जो शरा इमाम मुअत्ता के शरा किए हैं, जो मशहूर मुहद्दिसीन है, ठीक है, ये खुद लिखते हैं वफ़ीही रद्द अला मन जामा अन्नहु अलल अर्शी बेजात ही। इसमें उन लोगों का रद्द है जिनका अकीदा है कि अल्लाह ताला अर्श पर जात के एतबार से हैं, और यही बात अल्लामा ज़हबी और अल्लामा इब्न बत्ताल ने कहा है, और इब्न हजर अस्कलानी ने भी यही बात कही है। और दूसरी दलील और इब्न जोजी रहमतुल्लाह अलैह से मैं नकल कर रहा हूँ, वो भी यही फरमाते हैं कि कहते हैं कि अर्श पर अल्लाह ताला ने इस्तवा किया, ये अपनी जात के साथ, ये ऐसा इजाफा है जिसके पास कोई नकली दलील यानी कुरान हदीस से नहीं है। तो आखिरी बात मैं ये कह रहा हूँ, इनका अकीदा है कि अल्लाह ताला अर्श पर अपनी जात के एतबार से कायम है और सिर्फ अर्श पर है और कहीं नहीं है। इसकी वो दलील देवे, बेचारे ने अभी तक कोई दलील नहीं दी, न कुरान से, 41 हो रहा है, 10:41 हो रहा है, और ये बोलते हैं कि सिर्फ ये 2 मिनट बोले माअल्लाह रब्बिल आलमीन। तो पहले तो इन्होंने जवाब ही नहीं दिया है। अरे सुनो यार, मैं आपको बारहा यही कह रहा हूँ कि भाई 2 मिनट बोले, उससे ज्यादा बकबक ना करे,
تو آپ بجائے دلیل دینے کے اپنے ہی عقیدے کو من گھڑت اور باطل ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں. کسی نے جتنی عبارتیں سامعین انہوں نے پڑھی نا، کہیں پر بھی یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین پر ہر جگہ موجود ہے. یہ ہے ہی نہیں ان کی عبارت میں. ماشاءاللہ سے میں جتنی عبارتیں پڑھا ہوں اس کے اندر صاف اور شفاف لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے اور اس کا علم اور اس کی قدرت ہمارے ساتھ ہے. یہ میں بتا دیا. اب میرا کام تھا بتانا، میں بتا دیا. میرے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے میرے پاس دیکھیے دلیل کیا ہے. ایک تو قرآن کی واضح دلیل ہے، اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کے اندر دلیل ہے اور حدیث پیش. ارے خاموش، بیچ میں نہ بولے نا، میں تو بیچ میں نہیں آیا آپ کے. بیچ میں نہ بولے. کتاب التوحید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحیح بخاری میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کو مکمل کر چکا تو اللہ تعالیٰ نے ایک تحریر لکھی اور اس تحریر کو اللہ نے اپنے پاس عرش کے اوپر رکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ اللہ عرش کے اوپر ہے. سبحان اللہ. اب یہ مقلدین کو پتہ نہیں کہ کس کی بات مانتے ہیں. تقلید میں ارے عبارت پڑھنے کے لیے دلیل تو جائے گا. مقلد کیسے نہیں جائے گا. مقلد ہوگا تو عقیدے کے حدیث کے خلاف بھی جائے گا، قرآن کے بھی خلاف جائے گا. دیکھا آپ لوگوں نے پھر بیچ میں آ رہا ہے، اس کے بیچ میں آیا ہی نہیں. اور اس کے اوپر ایک حدیث سنا دیا. آپ صحابی کی بات سنیے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی کتاب التوحید میں کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. اللہ کے نبی سے بتا دیا، صحابی رسول سے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے بتا دیا، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بتا دیا. اب اس کے اوپر جو ہے سو اسحاق بن راہوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام زاہدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے اندر ہے. یہ کہتے ہیں کہ اہل علم کا، تمام اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے. یہ لیکن مقلد مانے گا نہیں. اور امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت والجماعت کا اجماع، پھر سے اجماع نقل کر کے کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت میں کسی ایک شخص نے بھی نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. یہ کہنے والے تو جہمیہ اور معتزلہ جو اللہ کو ہر جگہ مانتے تھے. اور اتفاقاً سے سامعین یہ وہی آیتوں کا سہارا لے رہے ہیں جن آیتوں کو جہمیہ اپنے من گھڑت عقیدے کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور سارے کے سارے جتنے مفسرین ہیں، ارے 44 سے ابھی 41 سے شروع کرا، 43 ہو رہا ہے نا، تو 2 ہی منٹ ہو. تم نے تو 4 منٹ بولا ہے نا. تو 2 ہی منٹ بولا تھا. ابھی اتنا جلدی کہاں پر بھاگو گے؟ 2 منٹ ہی بولا تھا. 2 منٹ ہی بولا. بس بات ختم ہو گئی. ہاں چلو 1 منٹ ابھی تم کو موقع دیتا ہوں. بھاگنا مت. 1 منٹ موقع دیتا ہوں، اپنے عقیدے کو ثابت کرو. یہ بندہ ابھی اپنے عقیدے کی ایک بھی دلیل نہ قرآن سے دیا نہ حدیث سے بھیجا، اور جو یہ ادھر ادھر کی خالی عبارتیں اردو میں پڑھتا رہا مگر کوئی دلیل نہیں دیا، ایک بھی دلیل نہیں بھیجا. لوگ سننے سے تھوڑی ہوتا ہے، دلیل تو مجھے بھیجے گا تب تو ہوگا. نہ عبارت پڑھا اس نے، دیکھو کبھی ایک عبارت نہیں پڑھا. اس کو معلوم ہے کہ یہ عبارت پڑھے گا تو یہ غلطی ثابت ہوگی. یہ بتائیے کوئی چیز کی دلیل سامنے بھیجنا چاہیے اور اس کی عبارت پڑھنا چاہیے، سند کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن یہ بیچارہ کوئی عبارت دیکھو اب بول رہا، میرے بیچ میں بول رہا ہے، میرے بیچ میں مت بولو، ٹھیک ہے. یہ ابھی تک اپنے عقیدے کی ایک بھی دلیل نہ قرآن سے ثابت کر سکا اور نہ یہ حدیث سے دے سکا. الحمدللہ یہ اپنے عقیدے کی ایک بھی دلیل کوئی نہیں دے سکا. میں نے اس کے عقیدے کا رد کیا ہے، ٹھیک ہے، قرآن سے حدیثوں سے بھی رد کیا ہے. ایک ٹائم دیکھ لینا، 43 سے 45 ہو چکا ہے. ہاں سن دیکھ لیجئے ٹائم. سامعین آپ یہ آڈیو سن لینا. اجماع آ جاتا ہے نا تو وہاں پر نہ اہل حدیث عالم کا فتویٰ چلتا ہے. اجماع اس نے بتایا نہیں، جھوٹ مت بول. اجماع کہاں بتایا؟ بیچ میں آ گئے. اجماع کس کا بتایا؟ نہیں ابھی میری بات ختم کر لیتے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 2992. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا ایون الناس اربعوا علی انفسکم. مجھے بولنے دے پہ میرے ٹائم پہ کیوں بڑبڑ کر رہا ہے؟ گھامڑ کہیں کے بیچ میں تمہارے تو اندھا مقلد تم نے شروع کیا 45 ہو چکا ہے. اندھا مقلد مجھے بیچ میں بولنا ہی نہیں دیتا. بیچ میں تو مجھے ٹوکتے رہتا ہے. ابھی دیکھو مجھے بیچ میں ٹوکا تھا کہ نہیں ٹوکا. عقیدے پر قرآن کی آیت کوئی نہیں آیت پیش کیا اس نے، نہ کوئی حدیث پیش کیا، نہ کسی کا ثابت ہے، کوئی نہیں پیش کیا. ایسے کالی بڑبڑ کرتا رہا. یہ حدیث میں پڑھ رہا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا الناس اربعوا علی انفسکم فإنکم لا تدرون السمع ولا غائب انما انتم سنت والجماعت میں کسی ایک شخص نے بھی نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. یہ کہنے والے جہمیہ اور معتزلہ تھے جو اللہ کو ہر جگہ مانتے تھے. اپنی جانوں کو رحم کھاؤ. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے کہ جہمیہ کا عقیدہ تھا اللہ کو ہر جگہ مانتے تھے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے کہ جہمیہ کا عقیدہ تھا اللہ کو ہر جگہ مانتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے کہ جہمیہ کا عقیدہ پاگل ہو گیا ہے. الامام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے یہ ثابت نہیں ہے. کس کے عقیدے کو ثابت ہی نہیں ہے. عبارت تو السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
हाँ बोलो जाकिर साहब, इतना डरते क्यों हो यार तुम? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। इतना डरते क्यों हो? कल मैं अगर डरता तो तुम्हारे को मैं थोड़ी फोन करता। पहले हाँ, उसूल तय कर कल लो। से कल जब से ही आप तुमको बुला रहा हूँ तो डर रहे हो, तभी तो फोन नहीं हाँ कर नहीं, रहे वो अभी देखेंगे क्यों नहीं बात करना चाह रहा था हाँ मैं आपसे, वो मैं आपको हाँ बता दूंगा। ठीक हाँ, है। डर के मारे हाँ, ना, उसूल चलिए। उसूल हाँ से गुफ्तगू करनी है तो उसूल से गुफ्तगू करो। हाँ, तो हमेशा ठीक। वसूल से ही किया है ना, बेवसूली तो तुमने किया है। तो अभी वो पता चलेगा मैं हाँ किसने तो चलो, मैं बेवसूली की है। वसूल बता देता हूँ, चलिए, ठीक है। आप अपना अकीदा बताइए, मैं वजाहत ले लेता हूँ। फिर यानी उसके तुम बाद मैं अकीदा अपना नहीं अकीदा बताओगे बताऊंगा। मैं यानी बोलो तुम ना, मैं अपना अपना अकीदा नहीं अकीदा बताओगे, बताऊंगा। तो डरते क्यों हो चलो पीछे ठीक बताने है, के लिए? मैं बता देता हूँ अपना अकीदा। मैं नहीं हाँ देता हूँ, तुम डर रहे हो इसलिए मुझे पूछ रहे हो। हाँ जैसे ही हाँ, मैं बताइए। अपना अकीदा बताऊंगा, तुमको जो हाँ वजाहत लेनी है ले लो। उसके बाद हाँ, तुम अपना अकीदा बता दो, मुझे जो वजाहत लेना है मैं वो वजाहत, वो तनकीद ले लेता हूँ तुमसे। अच्छा, वजाहत के मंजूर है? नाम पे टाइम पास करोगे? तो तुम, इसका चलो मतलब तुमको डर लग रहा है चलो अपना अकीदा बताने चलो, में? मैं बदला क्या कि मुझे डर लग रहा फिर है? क्यों मैंने टाइम पास कहा बोल क्या? रहे हो? तुमने तो कहा इसका वजाहत मतलब लूंगा, वजाहत के नाम से टाइम पास करोगे, अकीदा बताने वजाहत के के काम। बाद वजाहत कब लोगे? जब मैं अकीदा बता दूंगा। तो तुम कैसे कह रहे हो कि अभी अकीदा बताने से डर रहे हैं? अरे यार, तुम भंग पी के आता है क्या? तो हैं? अभी अभी पता चलेगा ना, ये हाँ, बड़ी अभी बड़ी पता डीलें मार चलेगा। लेना चलो बहुत चलो अच्छा लगेगा। चलिए, चलो हमारा चलो, अहले सुन्नत वल जमात व अहलुल हदीस व अहलुल तौहीद का अहले अकीदा है सुन्नत वल जमात। कि अल्लाह मुकम्मल होने देना बात। अब मैं अगर फिर तो रजिस्टर फिर अहले फलसफा हदीस बैद हो बोलो, जाएगा। अहले सुन्नत वल जमात कहाँ तुम्हारा? चलो ठीक है, चलो। कौन हनफी अहले सुन्नत है? बिल्कुल, हनफी, शाफई, अच्छा, किसने कहा? मालिकी, अंबली। किसने कहा? अच्छा, मुझे बता दो इमाम, साहबा ने हाँ हाँ, किसने चलो। कहा? फिर किसने कहा अल्लाह क्या? के नबी ने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा हनफी बनने के लिए तुमको? हनफी क्यों माना जाता है मालूम फिर है? अभी क्यों बोले जो हनफी है? हनफी, हाँ हाँ हनफी हाँ है, बोले बिल्कुल, क्यों बोले हनफी, अभी? शाफई, मालिकी, बस, हमने कहा ना जाहिल चारों। मुकल्लिद। इमाम इब्ने तैमिया ने कहा चारों अइम्मा को, इमाम चारों इब्ने अइम्मा को तैमिया फॉलो। दलील है? दलील नहीं, इमाम इब्ने तैमिया फिर को दलील नहीं मैंने मानता? कहा आपको, यानी उसने आपने कहा। इमाम, अच्छा एक मिनट, इमाम इब्ने तैमिया ने जो कहा चलो वो अब दलील ये नहीं है? चलो अब बेकार, अब ये चलो सारी बातें छोड़ो। चलो, ठीक है, इधर तुमने उधर कह दिया फलते मार इमाम रहे हैं। अबू हनीफा, इमाम इब्ने तैमिया दलील नहीं है, कोई बात नहीं, माशाअल्लाह, अच्छी बात है, चलो ठीक हाँ है। बिल्कुल, हम उनको दलील नहीं मानते अब अकीदे की किसको बुनियाद किसको पर। दलील मानता है ये बता दे। देखो, जब मैं बात करूंगा तो बीच में ना बोलो, या तो तुम अरे बात अभी कर लो ना। तुम्हें वसूल वसूल बयान कर रहे हैं ना भाई, दलील किसको किसको मानता नहीं, है वो बता दे। मैं बता देता हूँ ना, मेरा हाँ जब बात हाँ, मुकम्मल होगी तब आप बोलो। नहीं नहीं, दलील ऐसा किसको मुंह उठा मानता के है? बार बार नको आ जाओ ना। चलो ठीक है, मेरी बोलो। बात जब मुकम्मल होगी तो तुम बोलो, तुम्हारी बात जब मुकम्मल होगी तो मैं बोल देता हूँ। तू ही बीच में बोल रहा है ना। इसीलिए तुम्हारे, देखो, इसीलिए मैं तुमसे गुफ्तगू नहीं करता हूँ, यही हाँ, दीवाने डरता है हरकतें मालूम करते है, रहते थे। डरता है ये मालूम है ये मुझे। ये चल, बेकार बातें करते रहते, पूरे पागल ये बातें। ये डर वाली ठीक है, बात जो अभी है बोलने के छुपा बाद के फिर रखते ये हैं। अरे बोलने ठीक के है, बाद बोलना फिर अपना ये बात को। अब तूने कहा ना इमाम खामोश इब्ने रहो ना। तैमिया दलील नहीं है, ये तो तूने तुम भी कहा ना। बोले हाँ, इमाम अबू हनीफा तुम्हारे लिए दलील नहीं है बोल के। हमने कब फिर कहा? हमने इमाम कब अबू कहा? हनीफा बोले नहीं तुमको हनफी बनने के लिए, तुम इब्ने हमने तैमिया कहा की बात करने कैसे चले गए? अच्छा, इमाम बुखारी ने कहा तुमसे, तुम बुखारी शरीफ को मानो? किसने कहा? तुमने कहा क्या? इजमा इमाम है, चलो बुखारी ने अहले कहा। सुन्नत का इजमा है, अहले सुन्नत इजमा का इजमा है क्या इजमा है? बुखारी के ऊपर। क्या अब इजमा बोलो है क्या बुखारी बोलो, के? अब अच्छा, बात क्या है। इजमा? सुनना यार, अब सुनना। बोलो ना, अरे हनफी सुनना बनने पर बात। इजमा है। अरे हाँ, बिल्कुल इजमा है, जाहिल काहिल। बिल्कुल किसका इजमा है। किसका हनफी इमाम अबू, किसने कहा? बिल्कुल इजमा है, किसने कहा? किसने बिल्कुल कहा इजमा हनफी है। बनने के लिए? किसने? अच्छा, किसने तुमको किसने किसने कहा? मना किया? अच्छा, किसने मना किया? किसने कहा हनफी बनने के किसने लिए? मना किया? यानी बुखारी कि शरीफ ये की तो हदीस को बरेलवी का मानने का इजमा किसने कहा? इजमा इजमा किसने दलील है, कहा? जाहिल। इजमा इजमा खुद दलील है। अच्छा, इजमा जब दलील है तो हाँ, तकलीफ पर इजमा मैंने जब तुमको दिया तो भाग मैंने क्यों गया था तकलीद खून तो काट के? नाम लाया ही नहीं, मैंने तुमको भाग हनफी गया। बने तुम। नहीं नहीं, ये क्यों देखो, भाग गया? बिल्कुल ये इजमा देखिए, है, हनफी देखो। बनने पे भी इजमा है। अच्छा, किसने कहा तुमको हनफी बनने के लिए? नाम बताओ। किसने कहा? इजमा है उस हाँ, पर, सबने बना। किसने कहा? किसका तो इजमा है इमाम, बताओ? अच्छा, इमाम बुखारी की बात मानने के किसका लिए इजमा इजमा किसने है? कहा? इमाम बुखारी किसका मानने इजमा के है? लिए किसने? देखो, अरे अभी तो बताएगा बोले तो। इजमा है। हाँ बिल्कुल इजमा है। अस्तगफिरुल्लाह, इजमा अस्तगफिरुल्लाह। किसको, इजमा की तारीफ क्या है? नहीं, इजमा किसका नाम बोलो हाँ यार, क्यों बात है? बिल्कुल। देखो, इस तरह से तुम हाँ बात तो गोल गोल इजमा घुमाते तारीफ के बोलते चलो, हिसाब से असल इजमा बात करता बोलेंगे हूँ। ना। इजमा कितनी किस्म का होता है, चल बता दे। अच्छा, तुमको नहीं मालूम इजमा किसको होता है? मुझे मुझे सब मालूम है, तू बता खाली तो कितने बता दो, किस्म का खत्म हो गया होता है। मसला। अब अरे लोग मैं सुनेंगे बता ना, रहा हूँ क्यों ना, गोल गोल घुमा हनफी रहे हो? मानने के लिए इजमा है, मैं साबित कर रहा हूँ ना, तो भाग अच्छा क्यों रहा बोलो, है? किसका इजमा है? नाम बताओ। अरे इजमा तो किया भाई, इजमा की तारीफ नाम बताएगा फिर बताओ। मैं बताऊंगा। अरे नाम बताओ ना, तुम पहले इजमा नाम की बताओ। तारीफ कितनी है? तो इजमा तुमको तब नहीं तो मालूम है? साबित देखो, करूंगा। बहाने बना रहा है, इजमा की यानी तारीफ बताओ। हाँ बिल्कुल। इजमा किसको बोलते हैं इजमा बताओ, कितने बल्कि खाली किस्म ये तो में होता है? बहाने, तू इजमा ही अगर कितने ना चाहे किस्म, तो बहाने बता इजमा रहे। कितने किस्म का होता है? अरे इजमा है ना, इजमा तुम कितने बोलो किस्म का किसका होता इजमा? है, यही नहीं मालूम इसको। किसका इजमा इजमा कितने है? किस्म, इजमा कितने किस्म का होता है? अरे किसका इजमा है?
अरे वही तो बता रहा हूँ, इजमा कितने किस्म का होता है, बहुत मिसाल आदमी है यार, वही तो बता रहा हूँ, इजमा कितने किस्म है, पागल तो नहीं मालूम तो बता देता हूँ। किस्म का हो, अच्छा जितने अच्छा कितने भी किस्म का हो, हाँ पूरे किस्म को मिला के एक इजमा पेश कर लो, चलो। अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, चलो इजमा की तारीफ में, हाँ सुनना बात को, इजमा की एक तारीफ, हाँ इजमा की एक तारीफ है, इजमा सकुती, हाँ इजमा करो यार, ये देखो मैं वही बोल रहा हूँ, हम बस बता रहा हूँ वही, एक तारीफ है इजमा सकुती, इजमा सकुती से, अरे सुनना यार तारीफ, तो फिर क्यों, जब तुझे मालूम ही नहीं तो पूछेगा क्या, अभी तो बोला कितनी भी किस्म का हो साबित कर दो, तूने कहा मैं इससे बात नहीं करता हूँ, ये भागा ये भागा ये भागा ये भागा ये भागा भागा, मैं इजमा बताओ तो ये इजमा की तारीफ बयान करने लगे। इजमा तो मैं बता ही रहा हूँ ना यार, इजमा तो मैं बता ही रहा हूँ, इजमा की तारीफ करके ही मैं बताऊंगा ना तुमको, इजमा की कितनी तारीफ है, सारी तारीफ में मैं बताऊंगा, तो भाग क्यों रहा है, अपनी पास रखो यार तारीफ। अरे यार भाग रहा है तो इजमा नकल किया, मैं इजमा नकल के भी हाँ मैं वही सब बताऊंगा तुझे, इजमा किसने कहा किसने नहीं कहा सब बताऊंगा, सब बताऊंगा यार, खाली वक्त बर्बाद करना है। अरे यार तो तारीफ तूने कहा ना जितनी भी किस्में है, मैंने कहा इजमा की कितनी किस्में है, जितनी भी किस्में होंगी उसको बाजू रखो, मैं तो सारी, हाँ तो सारी किस्में तारीफ बता के पागल कही गए, जब पागल ऐसा बोल इसलिए मैं ये जाहिल से बात नहीं करता हूँ। इजमा की तारीफ तुझे नहीं मालूम है किसको कहते हैं, मैं देखो इजमा तुमने पूछा ना बुखारी को किसने कहा, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर इजमा नकल किया है। हाँ बताओ बताओ, मुल्ला अली कारी नाम बोलो ना, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी पर इजमा नकल किया कि सही बुखारी कुरान मजीद के बाद सही बुखारी सही है, इस पर उम्मत का इजमा है। मैं नाम ले रहा हूँ इनका, मुल्ला अली सही बुखारी सही है, इस पर उम्मत का इजमा है, ये नहीं मैं पूछ रहा हूँ, मैंने कहा बुखारी शरीफ की बात को किसने कहा मानने के लिए, मैंने कहा बुखारी की हदीस, अरे सुने ना बात को, भाग रहा है फिर भाग रहा है फिर भागा, ये जाहिल को देखो। अच्छा तुम नहीं मानते बुखारी, तुम नहीं मानते, हाँ हमारी बात तो मानेगा क्या, अरे तुम जिस चीज को तुम मानते हो, अरे यार हम मानते करने चाह रहे हो, फिर तुम तूने जो सवाल किया है जवाब तू नहीं मानता, नहीं मान रहा हो ना। देखो सही बुखारी को सही तुम मानते हो, सही बुखारी से तुम रिवायत भी लेते हो, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि भाई मुझे किसी ने कहा है सलफ में कि भाई तुम हनफी बनो। नाम बताओ किसने कहा तुमको। बिल्कुल सकोती इजमा है, देखो सकोती की तारीफ मैं करता हूँ, अरे नाम क्या है यार, पागल आदमी, जब तारीफ करूंगा तो ही मानेगा ना, जब तारीफ करूंगा तो ही मानेगा, बगैर तारीफ से मान लेगा। अरे यार ये भंग पी के आता है क्या यार, है चलो ठीक है, चलो भंग पी के आता है, इसकी देखो कैसे ये तारीफ करके गोल गोल घुमाता है, देख लो। मैं कहाँ घुमा रहा हूँ, मैं तारीफ कर रहा हूँ। अच्छा उलमा ने तो तारीफ पूछना, तूने कहा जितनी भी किस्में हैं सब में इजमा साबित कर, तो मैं तारीफ बता के इजमा तारीफ बताकर इजमा में साबित कर रहा हूँ, तारीफ बता के, बिल्कुल तारीफ की कितनी किस्में हैं वो मैं बता रहा हूँ। हाँ कर लो हाँ तारीफ बताकर इजमा फिर मैं शामिल करता हूँ, ठीक है। एक इजमा, हाँ अरे रुकोगा कि ऐसे बड़बड़ करेगा। एक इजमा होता है सुकूती इजमा, ठीक है। हेलो भाग गया क्या, बताते जाओ यार, बताते जाओ। सुकूती इजमा किसको कहते हैं, इजमा सुकूती से मुराद यह है कि किसी भी कोई भी चीज का किसी बात पर इजमा हो जाए, वो कोई उस पर एतराज न करे, ठीक है। तो कोई उस चीज पर एतराज न करे उसको कहते हैं सुकूती इजमा। और ये सुकूती इजमा अंग्रेज से पहले हनफी बनने के लिए किसी ने एतराज किया हो तो वो बता दे, सबने उसको माना। साफी बनने के लिए किसी ने एतराज किया हो तो वो बता दे, हम्बली या मालकी बनने के लिए किसी ने एतराज किया हो कि नहीं बनना चाहिए तो बता दे, चल बता दे। ये सुकूती इजमा, मैंने बस बिल्कुल सुकूती इजमा। अरे यार ये चीटिंग क्या, कितनी बड़ी चीटिंग करा, देखो कैसा आवाज। अच्छा इसमें अच्छा ये सुकूती इजमा क्या है, नहीं मानता, इसमें क्या चीटिंग है। मैंने अच्छा इसमें खामोश रहो, मैं तुम्हारी बात खामोश सुना ना। इन्होंने देखो कितनी बड़ी चीटिंग की, कितना बड़ा धोखा दे रही है। इन्होंने क्या कहा, इजमा है, तो इजमा तो कोई ना कोई नकल करना ना कि तुमको हनफी बनना है बोल के। तो ये बोल रहे कि इनकार कौन करे, बताओ कहते इनकार पे इजमा होता है। ये जाहिल को मालूम ही नहीं इजमा किसको बोलते हैं। सारे जैसे कि कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा, सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर जो है तो 115 में, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि' गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। यूनानी
मसली यानी कि उलमाए कराम किसी एक बात पर जमा हो जाते हैं ना। उलमाए कराम तर्जुमा कर उसका, किसी बात तर्जुमा करेगा। जो कोई मोमिनीन के रास्ते से हटकर कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करेगा जो कि मोमिनीन के रास्ते से हटकर हो, अलग हो, अल्लाह ताला उनको उसी रास्ते से जहन्नम में डालेगा। तो यहाँ से सलफ ने इजमा की दलील ली। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई तुम मुझे बताओ कि जब हनफी बनने पर इजमा है तो कोई एक इजमा आ जाने के बाद में दूसरा भी इजमा बन जाता है, फिर दूसरा के बाद तीसरा भी इजमा बन जाता है। तो फिर अगर तुम हनफी नहीं है तो फिर वो तो इजमा का मुनकिर होने की वजह से उसके ऊपर तो कुफ्र का फतवा लगेगा। और अगर कोई शाफी पर इजमा है तो उसको अगर वो शाफी नहीं बना तो उसके ऊपर भी फतवा लगेगा। जाहिल मुक़ल्लिद। फिर ये इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा से पहले ये लोग कहाँ थे, कौन से दिन पर थे जब इजमा नहीं बना? इसका मतलब बाद में इजमा। इन्होंने कहा ही, इमाम अबू हनीफा ने तुमको कहा कि हनफी बनो, बता दो, नहीं। इमाम शाफी ने कहा नहीं। बाद में किसी ने आके उनके नाम पे मसलक डाला तो तुम जो उसकी अंधभक्ति चालू कर दिए। और तुमको बताना था जिस तरह मैं बता रहा हूँ, तुमको कि मुल्ला अली खारी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, और जो है सो आपको शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, सही बुखारी कर सही होने पर। वैसा मुझे किसी का नाम लेके बताओ कि तुमको हनफी बनो बोल के बोले, कौन बोले तुमको हनफी बनने के लिए? हाँ चलो ठीक है। अल फतहुल मुबीन बेशरहिल अर्बईन, ठीक है। अल्लामा फकीह मुहक्किक शहाबुद्दीन अहमद बिन अली बिन इब्ने हजर हैतमी शाफी रहमतुल्लाह अलैह 974 हिजरी। खामोश रहो 974 हिजरी। ये कहते हैं अम्मा फी जमानिना फकाला बाजू आइमतुना ला यजूज तकलीदु गैरल आइमतिल अरबा अश-शाफई व मालिक व अबी हनीफा व अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन लियन्ना हाउलाए कद उरिफा। ये कहते हैं इजमा क्या क्या पढ़ ले रहा है जाहिल, देखो पढ़ने तक नहीं आ रहा है। ये घबरा गया। हाँ चलो पढ़ो क्या है। हाँ। ये कह रहे हैं कि ये हमारे इमामों ने, शाफियों ने कहा कि इस बनेगी। अरे यार हमारे इमामों ने क्यों शाफी, अच्छा शाफी क्यों नहीं दलील है, क्यों नहीं दलील है? अभी मैं खामोश रहे, तुमने कहा, किसने कहा? अभी शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देहलवी से भी साबित करता हूँ, घबरा मत। कहते हैं तर्जुमे है कि हमारे इमामों ने कहा कि इस जमाने में इन चारे इमामों के सिवा किसी और की तकलीद जायज नहीं। अब देखो ये इस पर इजमा है। दूसरा मैं बताता हूँ, ठीक है। अरे चारों का नाम लिया, बिल्कुल। इमाम अबू हनीफा, इमाम हनफी, देखो शाफई, देखो भाग रहा है। अभी दूसरा इजमा कर रहे हैं यहाँ पे, वो मालिक वो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। ये देखो आइमा का नाम है, ये भाग रहा है। देखो दूसरी दलील भागना मत, दूसरी दलील ये तकलीफ। अरे हनफी, अरे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के बात मानना, वो क्या हनफी नहीं कहलाता है? वही तो हनफी कहलाता है। वो उन्होंने कहा है उनकी तकलीद करना। अभी तक क्या समझ? हाँ, उनकी तकलीद करना, उनकी तकलीद नहीं, हनफी नहीं होता है। तकलीद करना हनफी नहीं होता है। तो इमाम अबू हनीफा किसकी तकलीद करे? तो अरे उनकी तकलीद करना, उन्होंने कहा है कि इस जमाने में इन चारों आइम्मा की तकलीद करना, ठीक है। उसके अलावा किसी की, अरे सुनना पूरी बात है। पूरी बात क्यों बीच में बोल रहा है? अब जब मैं बोल रहा हूँ तो भाग रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। अब मैं जब बोल रहा हूँ तो भाग रहा है। अब क्यों भाग रहा है? अभी क्यों भाग रहा है? अभी क्या हो गया? हालत खराब हो गई है? अभी इजमा नकल कर रहा हूँ तो तुम्हारी हालत खराब हो रही है। ये इजमा ये नकल हो गया है। अब तुमको शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से तुमने नाम उनका लिया है ना, तो उनसे मैं भी नकल कर रहा हूँ, ठीक है। शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देहलवी क्या फरमाते हैं? निकालो किताबा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम तुम्हारी तरह ऐसे गैर जरूरी हवाले नहीं देते। तो ये तो हवाले अभी चुप रहो अभी यार। तकलीफ करके तूने तो शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देहलवी का नाम लिया तो तकलीफ किया है। तूने तकलीफ किया है तो तूने तकलीफ किया है। अभी उनका नाम लिया तो तकलीफ किया है। हाँ, ये कह रहे हैं वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारी जो यहाँ पे खड़िया। हाँ बता रहा हूँ ना, घबराओ क्यों? हम बिल्कुल अकीदुल मजीद में कहते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, सवाद आजम बड़ी जमात की। फिर भी उन चार फिकही मसले के हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली के अलावा हक पर मबनी कोई और फिकही मसलक नहीं है दुनिया में।
इन चारों की बनने के इन हाँ सेवा नहीं है दुनिया में, खुद कह रहे हैं। तो हाँ मौजूद लहजा उनकी पैरवी स्वाद आजम की पैरवी कहलाएगी, और उन चारों मसालिक को छोड़ देना, उनसे बाहर हो जाना स्वाद आजम से निकल जाने के मुतरादिफ है। इन्होंने 4 मसलक की पैरवी को कहा है कि बनने, या हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली। तुमने नाम लिया ना, झूठ बोल रहे थे। ये मैं झूठ बोला तो किताब मंगा लो। अभी मैं अभी किताब मंगा लो, किताब मंगा लो, किताब मंगा लो। अगर मैं झूठ बोला, अब मैं झूठ बोल रहा हूँ। अब ये देखो, अल इंसाफ की बयानी असबाब में बीच में मत बोल, बीच में मत बोल, बीच में मत बोल, हाँ बीच में मत बोल, बात करो, बीच में मत बोल, नहीं बीच में मत बोल। ये देखो मोदी फरमाते हैं अल इंसाफ की बयानी असबाब इख्तिलाफ, कहते हैं वजब अलैहि अन युकल्लिदा लिमज़हबी अनी अबी हनीफा, कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के मसलक को पकड़ना वाजिब है। इन्होंने देखो खुद कहा है हनफी बनने को लिए। अभी हाँ चल बता, अभी और भी हवाले हो नहीं गया। पहले अभी इनको क्या बताना था, इजमा बताना था। इन्होंने तो इजमा बताया ही नहीं। बताया इजमा, पहले इजमा ही बताया, पहले इजमा ही बताया मैंने, पहले इजमा बताया। अल्लामा इब्न हैतमी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इब्न हैतमी रहमतुल्लाह अलैह, वो तो शाफी है। तो क्या हुआ, इजमा किसी का भी नहीं होना, तो किसी इजमा तुम्हारे लिए थोड़ी बनेगी। अच्छा एक बात बताओ, नहीं क्यों नहीं बनेगी, फिकी मसला थोड़ी है, अकायद में तो हम हाँ बताओ। मुझे बोलने दो ना, अभी तुम्हारी तो अभी चालू हो गई। अब मैं तुमको बताता हूँ, देखिए सामने अल्लाह के नबी ने कहा मेरी इत्तेबा करो, और अल्लाह के नबी ने क्या कहा, सहाबा की इत्तेबा इताअत करो। ठीक, गोया अल्लाह के नबी ने क्या कहा, गोया जिसने मेरी इत्तेबा, अल्लाह कह रहा है जो कि नबी की इत्तेबा करेगा वो गोया अल्लाह की इत्तेबा हो जाएगी वो। ठीक, तो यहाँ पर सहाबा इकराम तो दलील हो गए, अल्लाह के नबी भी दलील हो गए। अब यहाँ पर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बोलना ना कि मेरी तकलीद करो। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि ना तुम जो है सो किसी की तकलीद करो, ना तुम इल्म वहां से हासिल करो जहां से इन्होंने इल्म हासिल किया। तकलीद करके कोई मुज्तहिद बनता है? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्द से क्या कह रहे हैं, तुम मेरा फतवा ना लिखा करो, हर फतवे को लिखा ना करो, मेरी हर बात को ना माना करो। मेरा आज एक फतवा होता है तो कल बदल जाता है, कल अगर मेरी दूसरा फतवा तो परसों मेरी राय तब्दील हो जाती है। यानी कि अगर तकलीद होती तो मेरा हर फतवा मानते जाओ, मेरे मुकल्लिद बनते जाओ, नहीं कहा उन्होंने कहा इज़ा सहल हदीस फहुवा मज़हबी, जो सही हदीस है वही मेरा मज़हब है। बोले सही हदीस का मालूम होगी, तकलीद करे तो सही हदीस मालूम होती है। नहीं चलता आपको कि वो रावी कौन है, वो तहकीक करना पड़ता है। तकलीद में तो खाली बोल ले तो सुन लिए बस खलास, तो कोई तहकीक नहीं होगी है। तो यहाँ इमाम अबू हनीफा ने तो कहा ही नहीं कि भाई तुम किसी की तकलीद करो, तो बाद के लोगों का नाम लिए। तो मैं कह रहा हूँ तो इमाम अबू हनीफा ने तो नहीं कहा, इमाम अबू हनीफा ने कहा नहीं कहा उन्होंने। और तुम इजमा बोले, इसको इजमा बोल ही नहीं सकते, झूठ बोल रहे तुम। जब इजमा आ जाता है ना, किस पर इजमा आया, सही बुखारी पर इजमा आ गया। दूसरी किताब उतनी मोतबर नहीं मानी जाएगी जितनी सही बुखारी मोतबर मानी जाती है, समझे। उस तरह अगर तुम इमाम अबू हनीफा के मसलक को अगर तुम बोलते हो इस पर इजमा है, तो इसका मतलब ये निकला कि बाय डिफॉल्ट शाफई, हम्बली, मालिकी खुद ब खुद गिर गए वो, क्योंकि जब इस पर हनफी बनने पे इजमा आ गया तो खुद ब खुद मालिकी खत्म हो गया, खुद ब खुद शाफई खत्म हो गया। देखो ये देखो भाग, ये भाई ये खुद, अब खामोश रहो, अब तुम खामोश रहो ना, बात सुनो ना भाई, अब क्यों इतना भाग रहे हो इधर उधर। देखो सामीन, मैंने इनको इजमा सुकूती भी दिखाया, फिर ये बोले कि नाम लेकर कहो किसने इजमा दिखाया। खामोश रहो यार, खामोश रहो। हमने हाँ खामोश रहो, मेरे बीच में क्यों बोल रहा, अभी जब मैं तेरे बीच में नहीं बोला हूँ तो तुम मत बोलना, ठीक है। खामोश रहो, अच्छे से सुनो, अच्छे बच्चे की तरह, तो अच्छा रहेगा। तो इन्होंने देखो खुद माना है, एक चीज इन्होंने कहा है कि इमाम औजाई या पला ने कहा कि जिनकी ये वो जैसा करते हैं वैसा करो। देखो इजमा, इस पर तकलीद पर भी इजमा है और मानने का भी इजमा है। मैंने इजमा सुकूती भी बयान किया और उनसे भी बयान किया, अल्लामा हैतमी रहमतुल्लाह अलैह से। ये कहता है साफी मसलक को नहीं माने जाएंगे, और ये खुद दूसरे इमाम शाह मोहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह की बात नकल किया, जबकि वो हनफी मसलक के थे। ये हनफी मसलक की बात को नकल करेगा तो मानी जाएगी। और ये देखो तबकातुल हनाबला, इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं वमन जामा अन्नहु ला यरा तक़लीदा ला युक़ल्लिदु दीन अहदन फहुवा क़ौल फासिक़ इंदल्लाहि व रसूलिही इन्नमा युरीदु बिज़ालिका इब्ताल अल असरी व तातील अल इल्मी व सुन्नति व तफर्रुद बिर राय वल कलामी वल बिदअति वल खिलाफी।
کہتے ہیں جی امام احمد بن حنبل کی جس شخص کا گمان یہ ہے کہ تقلید کوئی چیز نہیں، وہ دین کے معاملے میں کسی کی تقلید نہیں کرتا، تو اس شخص کا قول خدا اور اس کے رسول کے نزدیک ایک نافرمان کا قول ہے، ایک فاسق کا قول ہے، جو اپنے اس قول کے ذریعے علم سنت کو رائے گاں اثر کو باطل کرنا چاہتا ہے اور خود رائی بکواس بدعت اور اختلاف کو بنیاد بنانا چاہتا ہے۔ یہ کون کس کا فتویٰ ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ امام شافعی فلاں کی تقلید کرتے تھے۔ اگر تقلید غلط ہے تو بھائی یہ ان کا کیوں کہہ رہے ہیں امام احمد بن حنبل؟ کون کرتے تھے تقلید؟ امام احمد بن حنبل تقلید کرتے تھے؟ امام شافعی تقلید کرتے کوئی مجتہد بن جاتا ہے تقلید کرنے سے؟ یہ اصول کہاں سے لائے؟ اچھا، تو یہ اصول اگر غلط ہے تو ان کو ابن قیم جوزی سے بولتا نا۔ ارے تو تم تو پڑھے لکھے ہو، اس کا مطلب یہ نکلا کہ تم تقلید کر کے ثابت کر رہے ہو۔ ہاں، یعنی شافعی فی عدت معاجی قلت تقلید النصری، خود تقلید کا، ہاں بالکل امام شافعی رحمۃ اللہ کا عطا بن ابی رباح کی تقلید کا اقرار کرتے ہیں۔ یعنی بھائی کیا بھاگ رہا ہے؟ اور تو مجتہد کو مقلد خاموش رہو کیوں ہو گیا؟ ابھی کتنا بولو گے؟ یہ تو ان سے پوچھنا نا اپنے افسر ہو سننا جس کو یعنی کہ تم یہ کیا مانتے ہو امام شافعی مقلد تھے؟ ابن قیم جوزی سے پوچھنا بھائی نا۔ ارے یار تم کیا مانتے ہو؟ ارے ابن قیم سے پوچھنا نا، کیوں نہیں دلیل ہے؟ یعنی کہ یہ شافعی امام شافعی کو جو ہے یہ مقلد ثابت کر رہا ہے، تو پھر میں ثابت کروں گا امام ابو حنیفہ بھی مقلد ہے۔ میں ثابت کر رہا ہوں کہ ابن جوزی ثابت کرے، تو ابن جوزی کے ٹکر پہ آ رہا ہے کیا؟ ابن جوزی کی بات کر رہا ہے۔ اب یہ شرح السنہ میرے پاس ہے جس کا یہ حوالہ بار بار دے رہا ہے، یہ خود خاموش ہے۔ پہ بات کرو، ماں بحث نہ کرو۔ کیا ایک اسکیل پہ بات تو دلیل دینے کی بات کر رہا ہے نا، تو دلیل دینے کی بات کر رہا ہے تو میں دلیل دے رہا ہوں۔ کہاں گھما دیا بات؟ کہاں سے کہاں گھمایا ہے؟ ارے تو کہاں سے کہاں گھمایا ہے؟ دیکھو شرح السنہ جو ابھی محمد حسن بن علی بن خلف بربہاری کے المتوفہ جو ہے 329 ہجری کے ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں تقلید کے بارے میں؟ فَإِنَّ الدِّينَ إِنَّمَا هُوَ التَّقْلِيدُ، دین جو ہے وہی تقلید ہے، یعنی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہتے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تقلید۔ دیکھو خود کہہ رہے ہیں جو تقلید وہی دین ہے۔ تو اچھا ان کے یعنی بولتے کس کو بھائی؟ اب تقلید پہ آ گیا، کس کو بولتے ہیں؟ یعنی پہلے یہ تقلید بول رہے ہو، ابھی دیکھو بھاگ گیا، دیکھو نبی کی بات کو تقلید بول رہے ہیں تو پھر وہ حدیث کہاں رہی گئی؟ جاہل میں بول رہا ہوں کیسے مانتے ہو ان کی بات کو؟ میں تو حوالے دے رہا ہوں، حوالہ دے رہے ہو تو اس کو مان تو لو، خالی ایسے ہی حوالہ دیتے ہو ہوا میں، تو کیوں نہیں مان رہا ہے؟ شرح السنہ کو حوالے دیتا ہے، شرح السنہ کے حوالے تو دیتا ہے کہ دوسروں کو منواتا ہے، نہیں مانتا ہے؟ میں نہیں مانتا ہوں اس کو، شرح السنہ کا حوالہ نہیں مانتا کیوں؟ اچھا شرح السنہ کا حوالہ تو دیتا ہے، دوسروں کو کیوں دیتا ہے جب ایک کتاب کا نہیں مانتا؟ میں اس بات کو بالکل نہیں مانتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی بات تقلید ہے؟ یہ نذیر حسین دہلوی نے بھی کہا ہے اللہ کے رسول کی بات ہو یا نہیں مانتے ہو؟ میں نذیر حسین دہلوی نے بھی کہا ہے، غلط بول رہے ہو۔ اچھا کیوں غلط بات ہے؟ تم غلط تم مانتے ہو؟ کیوں غلط ہے؟ اللہ کے نبی کی بات کو تقلید مانتے ہو؟ کیوں غلط ہے یہ بتا؟ نہیں، اللہ کے نبی کی بات ماننا تقلید ہے تو کیوں غلط بتا رہا ہے؟ تم بولو نا، میں تو انکار کر رہا ہوں، ان کی بات انکار کرنے سے مجھے کوئی گناہ لازم آئے گا۔ نذیر حسین دہلوی نے جو کہا ہے کہ اللہ کے رسول کی بات کو ماننا، صحابہ کرام، اچھا علامہ جہدی نے کہا کہ صحابہ کرام کی تقلید، وہ سب کی باتیں میں نہیں مانتا ہوں، اچھا نہیں مانتا، مجھے گناہ لازم نہیں آئے گا نا۔ تیرے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ صبح پہ آ گیا دیکھے تیری اوقات کیا ہے؟ بالکل بالکل، ابھی تیری اوقات کیا ہے؟ تو علامہ جہبی کو بولتا ہے نہیں مانتا ہے نا، اور علامہ بربہاری کو بولتا ہے نہیں مانتا ہے، تیری اوقات کیا ہے تو ماننا نہ ماننا؟ تیری بات مانی جائے گی کہ سلف کی بات مانی جائے گی؟ میں ابھی تم کو میں بتاتا ہوں، اس کا جواب دیجیے۔ ابھی سامعین انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی کی بات کو ماننا تقلید ہے نا، تو جب اللہ کی بات کے ماننے سے صحابہ مقلد ہو گئے تو پھر امام ابو حنیفہ خود بخود مقلد ہو گئے، تو پھر وہ مجتہد کام آخر ہے؟ جاہل، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب۔ اچھا ایک بات، امام ابو حنیفہ مقلد تھے؟ اچھا امام ابو حنیفہ مقلد تھے؟ ارے یار کہاں کی بات کہاں جا رہا ہے؟
अल्लाह के नबी की बात को तकलीद बोलता है, तो फिर अल्लाह के नबी की बात को इमाम अबू हनीफा से ज्यादा कौन फैलाते थे? इमाम शाफी भी फैलाते थे, इमाम अहमद इब्न हंबल फैलाते थे, तो ये भी मुकल्लिद हो गए। तो इसका मतलब ये निकला कि कोई मुजतहिद ही नहीं है, सब के सब मुकल्लिद है, और मुकल्लिद की तकलीद होती है। ये उसूल कहाँ से लाए? जाहिल, इसीलिए बोलते हैं मुकल्लिद जाहिल होता है। अच्छा, ये इसके पास अकल नहीं है, तो इसका जवाब हाँ बिल्कुल, इब्ने तैमिया बिल्कुल दुरुस्त है। अरे मेंटल वही बोल रहा हूँ, खामोश रहे, तो अपने टाइम पे बकवास कर लिया, मुझे बोलने दे, ठीक है। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ने अपने फतावा इब्ने तैमिया में कहा है, और दूसरी जगह भी दूसरे इमाम ने कहा है कि इसमें किसी का इख्तिलाफ। अरे तेरी बात का जवाब, तेरी ओ मेंटल भंग पी के आता है क्या? तेरी बात का जवाब दे रहा हूँ, रुक ना, खामोश रहे, 2 मिनट खामोश रहे। हाँ, तेरी बात का जवाब दे रहा हूँ ना कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की बात तूने किया है ना, क्या ये कह रहा है मैं फला की बात नहीं मानता फला। अरे तेरी क्या औकात है, तू फला की बात नहीं मानता, तेरी कोई हैसियत है? अब ये कह रहा है कि सहाबा कराम अगर तकलीद कहें उनकी बातों मानने को, तो इमाम अबू हनीफा दीगर उलमा भी मुकल्लिद हो जाएंगे, ठीक है। इसको मैंने इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह के नकल किया है कि वो कहते हैं कि इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह जो है वो मुकल्लिद थे, मैंने नकल किया। फिर इसका जो एतराज है, ये इसका जवाब ये है कि इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह जिसको ये कह रहा है उसकी बात दलील नहीं है, चलो ये तो सब सुन लेंगे। उन्होंने नकल किया है कि इसमें तो किसी का इख्तिलाफ नहीं है कि कोई आम आदमी अपने उलमा की तकलीद करे, इस पर किसी का इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन कोई मुज्तहिद किसी मुज्तहिद की तकलीद करे, इसका इख्तिलाफ है। तो कहते हैं कि एक मुज्तहिद अपने से बड़े मुज्तहिद की तकलीद कर सकता है, ठीक है, अपने बड़े के मुज्तहिद की तकलीद करना जायज है। तो ये इसका मतलब निकला। अब ये जमाने में अपने बड़े से जरूर मुकल्लिद है, कोई और थोड़ी है, हर आदमी तकलीद करके आता है। तूने मान लिया, पहले थे इमाम इब्राहिम, वो अपने उस्ताद के मुकल्लिद तो थे ही ना, जब मुज्तहिद बचपन से ही बन गए थे क्या? यानी तो मानता है बचपन, यानी तो बचपन से मुज्तहिद मानता है, तो बचपन से ही मुज्तहिद मानता है, यानी तो बचपन से मुज्तहिद मानता है, इसका मतलब माशाअल्लाह तुम बचपन से ही मुज्तहिद मानता था, माशाअल्लाह। अरे वो अच्छा, मुझे उसूल लेकर आओ, तकलीद करने से कोई उसूल लेकर आओ, क्योंकि मुज्तहिद बनने का उसूल है ना। एक उसूल मुझे बताओ कि तकलीद करने से कौन मुज्तहिद बनता है, कहाँ ये उसूल किसने बताया तुमको? अच्छा, पहले तकलीद किया बाद में मुज्तहिद हुआ, तो ऐसा नहीं होता है क्या? ये बता दे। नहीं, तकलीद करते ऐसा होता है कि नहीं होता? नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा, तो इब्ने क़य्यिम ने झूठ बोला है कि इमाम शाफई जो है मुकल्लिद थे? अरे तो इसका मतलब गोया कि मुकल्लिद की तकलीद ही नहीं होती है ना। ये तो जवाब दे, इब्ने क़य्यिम ने झूठ बोला है क्या? ये जवाब दे, इधर उधर मत बात का जवाब दो। हाँ, कि इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह वो जो है मुकल्लिद थे, झूठ है तो बोल, उसने झूठ बोला। नहीं थे, बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात। तो इब्ने क़य्यिम ने झूठ बोला? बिल्कुल, उनसे गलती हो सकती है, मुज्तहिद बिल्कुल झूठ बोला, कहता है। अच्छा ये इलामुल में इब्ने क़य्यिम ने लिखा है, इमाम शाफई ने हजरत उमर, हजरत उस्मान और इमाम अता की तकलीद करने की सराहत की है, बावजूद कि वो मुज्तहिद आइम्मा में से थे। देखो, इसका जूनागढ़ी ने तर्जुमा भी यही किया है। एक मिनट देखिए, सामने ने करा, यहाँ पर बात बहुत मजे की है। अल्लाह के नबी की बात इन पर सादिर आ रही है। अल्लाह के नबी ने यहूदियों के बारे में कहा था, क्या कहा था कि इन्होंने अपने उलमा को, अपने जो उलमा उस जमाने के यहूदियों के, उनको रब बना लिया। तो सहाबी पूछे कैसे रब बनाए, तो अल्लाह के नबी उसकी तशरीह करे। तो यहाँ पर ये देखो, इनकी अंधभक्ति बोलूं या फिर उनको कुछ बोले तो बोले आप ऐसा बोलते ना। इन्होंने अभी क्या कहा सामईन, सहाबा अल्लाह के नबी के मुकल्लिद, यानी कि सहाबा को मुकल्लिद बोलने के लिए तैयार है, इमाम अबू हनीफा को मुकल्लिद बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये कितना इसकी जान निकल रही है मुकल्लिद बोलने के वास्ते। बोलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम शाफई को बोल रहा है मुकल्लिद है, लेकिन इमाम अबू हनीफा को बोलने से कितना घबरा रहा है। देखो, इसकी यही तो है ना गुलू, इय्याकुम वल गुलू बोले इसलिए अल्लाह के नबी। इमाम शाफई को बोले, उन्होंने बोले मुकल्लिद। अरे मैं अब खामोश रहे, देखो मुझे उसूल बताओ, हो गया उसूल बताओ, उसूल बताओ। खामोश रहे। हाँ, मैंने आपने सुना ये जाकिर जो है इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह को कहता है यहूदी आलिम थे, अस्तगफिरुल्लाह।
यहूदी आलिम में इसको झूठों पर अल्लाह की लानत हो, इसलिए अल्लाह के नबी झूठ बोले। अभी तूने कहा है अपने उलमा की वो लोग अंधी तकलीफ करते थे, अंधा नाम लेके मैंने कहा नहीं मैंने जब दलील दिया कि बिल्कुल तुमने किया, सामयीन समझ जाएंगे। खामोश रहे। आपने देखा कि इसने कईम रहमतुल्लाह अलैह को नौज़ुबिल्लाह क्या कह रहा है कि वो यहूदी आलिम के थे, उनकी मिसाल यहूदी उलमा से दे रहा है, ठीक है। अब हाँ अस्तगफिरुल्लाह इसने ये कह रहा है कि वो यहूदी उलमा में से थे, अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है। अब इसी तरीके से ये दूसरे उलमा की खामोश रहे यार, बात करने दे मुझे। खामोश रहे ना, बताइए खामोश रहे, वो बोल रहा है लेकिन उसूल देखिए, खामोश रहे ना, मुझे खामोश रहे। अबे गाली होती है किसने कहा अबे गाली होती है? अजय चल दलील दे, अबे गाली होती है। अबे तो इमाम अबू हनीफा के टक्कर करेगा, तेरी औकात क्या है? नहीं अबे गाली होती है, अबे गाली होती है तो दलील देना, इमाम अबू हनीफा बोल के तो दलील दे। देखो सामईन इलामुल मुवक्किईन इसमें अबू हनीफा का नाम देखो, सुन नहीं रहा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से तो ये चिड़ कितनी है यार जिनको अल्लामा जहबी उनको इमाम आजम कहते हैं, तो कम से कम अल्लामा जहबी की तो मानते नहीं है, मानते थे, ठीक है। कैसे मानते थे? वो भाई जब वो तालीम हासिल कर रहे थे तो तकलीद करके ही तालीम हासिल किया। जब मुस्तहिद बन गए तो छोड़ दिए। वो कैसा करे, ये क्या हो तरीका? आजा मेरे पास, बताता हूँ, अभी नकल करके आजा मेरे पास, एक देश दो, ठीक है। तो देखो इलामुल मुवक्किईन, ये इब्ने क़य्यिम जोज़ी की किताब है। वो कहते हैं इख्तलफ़ सल्फ़ फ़ी ज़ालिका फ़मिन मन यक़ूलु यजिब इत्तिबा ताबई फ़ीमा अब्तबही वलम युख़ालिफ़ फ़ीही सहाबी वला ताबई, ठीक है। इसी तरह कहते हैं वसर्र साफ़ी फ़ी मौजिब अन्नहु क़ालहु तक़लीदन लि अताई वहाजा मिन कलामी इल्मी व फ़िक़ही रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इसका तर्जुमा इसका जूनागढ़ी खुद किया हुआ है। कहता है कि इमाम शाफ़ई ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत और इमाम अता रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद करने की सराहत की है, बावजूद कि वो आइम्मा मुज्तहिदीन में से थे। अफसोस इमाम शाफ़ई खुद तकलीद करने की सराहत की है, ये देख लो। हाँ अब ये खामोश रहे। तो अल्लामा इब्ने जोजी को कहता है कि वो उसकी बात इसके नजदीक दलील नहीं है, और वो यहूदी उलमा में से शुमार कर लिया, यानी इनकी बात मानना यहूदी उलमा की बात मानने जैसा है। अस्तगफिरुल्लाह, इस तरह की बात किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जाकिर जो है एक मेंटल पागल हो गया है। तकलीद खुद करता है, अंधी तकलीद, बगैर तकलीद के एक हदीस नहीं ये साबित कर सकता, और तकलीद की बुराई करता है, इधर उधर बुराई करता है। हाँ खामोश है हाँ बेकार तकलीद के। और इमाम मालिक हाँ बिल्कुल बगैर तकलीद के एक हदीस तो साबित नहीं कर सकता, ठीक है, एक हदीस। हाँ बिल्कुल। इसी तरह इमाम मालिक ने फरमाया कि अहकाम में अवाम पर मुज्तहिदीन की तकलीद वाजिब है। सरा तनकीहिल फसूल फी इक्तिसारिल महसूल फिल उसूल, इसमें लिखा हुआ है। हाँ वक़द इस्तस्ना मालिक रहमतुल्लाह मिन ज़ालिका अर्बा असरा सूरतन लि अजली ज़रूरती, ठीक है। इन्होंने खुद उसको कहा है कि काला मालिक यजिबु अलल अवामी तकलीद अल मुज्तहिदीन फिल अहकामी, मुज्तहिदीन की तकलीद अवाम पर वाजिब है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने खुद कहा है। सोचो अब ये इसका कुछ आता जाता नहीं है। हाँ हो गया, चलो ठीक है, अभी कितना देर बोलोगे? मैं खामोश रहा, इसका मतलब बोलते जाओगे। सामईन कराम, आप लोग गौर से देखो, ये तकलीद को साबित कर रहे हैं। पहले तो तुम इमाम अबू हनीफा को मुज्तहिद तो साबित करो। खुद बोलते हो कि सहाबा कराम को बोलते हो ये मुकल्लिद है, और मेरे को एक उसूल पूछा, मैं वो उसूल तो नहीं बताया कि मुज्तहिद कैसे बनता है, कोई तकलीद करके मुज्तहिद बनता है कोई। और तकलीद तो बिना दलील वाली बात का नाम है, दलील वाली बात को मानना तकलीद ही नहीं है। तो कोई बिना दलील वाली बात मानना, इसका मतलब ये निकला कि इमाम अबू हनीफा के पास कोई दलील ही नहीं थी, वो बिना दलील वाली बातें ले लेके जो है मुज्तहिद बन गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यही माना निकला। क्योंकि कुरान की बात मानना तकलीद नहीं, हदीस की बात मानना भी तकलीद नहीं। अब इन्होंने ये बात ये कही यहाँ पर
کیا کہا انہوں نے کہ بھائی بغیر تقلید کے ایک حدیث دکھا دو بولے. جب ہم نہیں دکھا سکتے تو پھر امام ابو حنیفہ بھی نہیں دکھا سکتے. تو پھر بائی ڈیفالٹ امام ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، امام احمد ابن حنبل ہو، ان کے پاس بھی اگر حدیث پہنچ رہی ہے تو بغیر تقلید کے نہیں پہنچ رہی ہے. تو سب سے بڑے مقلد تو یہ ہوئے. ہم اگر مقلد ہے بقول تمہارے تو سب سے بڑے مقلد تو یہ ہے نا. جب وہ مقلد ہو جائیں گے تو ہم بھی خود بخود مقلد ہو جائیں گے. اتنے بڑے لوگوں کو تم مقلد نہیں مانتے ہو. اور علم حاصل کرنا یہ تقلید نہیں ہے. یہ کس نے کہا تم کو کہ علم حاصل کرنا تقلید ہے؟ تم اب بھی بولے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کرے تو علم حاصل کرنا تقلید ہے؟ کس نے آجا یہ تقلید ہے تو پھر کوئی تقلید کس کا؟ تقلید کا یہ معنی کیوں نکلا کہ بھئی بنا دلیل والی بات ماننا خالی اعتماد کے طور پر؟ تو علم تو بنا دلیل علم ہوتا ہے. اب تم نے کہا کہ امام ابو حنیفہ مجتہد کیسے تھے، کس نے کہا وہ بتاؤ. اصول بناؤ، پہلے اصول بتاؤ. اب ایک اصول جب تک آگے نہیں بننے دوں گا اصول بتاؤ. دیکھو بھاگ رہا. ابھی میں اس کے بیچ میں نہیں بولا، میں اصول ہی بتا رہا ہوں نا بھائی، اصول ہی بتا رہا ہوں. ہاں، اس نے کہا کہ امام صاحب مجتہد کیسے تھے، کس نے کہا ہے؟ بھائی امام صاحب تو مجتہد سب نے مانا ہے، اس پر اجماع ہے. دوسری بات کس نے کہا؟ المنل الصافی والمستوفی الباد الوافی. ٹھیک ہے، اس میں لکھا ہے علی الامام اعظم ابو حنیفہ راس المجتہدین. کیا ہوتا ہے یہ اعظم؟ کیا ہوتا ہے یار؟ اعظم پڑھو، صحیح سے الفاظ استعمال کرو نبی کے صحابہ کے بارے میں، یعنی علم حاصل کرنے والوں کے بارے میں. صحابہ نہیں ہوتا، صحابہ. ٹھیک ہے، پھر آپ اعظم کیا بول صحابہ نہیں ہوتا. اعظم ہی نہیں بولیں گے، کیا بولیں گے؟ جیم سے بولیں گے. اعظم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ چل بتا دو. چل اعظم ہوتا ہے، زواد ہے نا وہ. جواد نہیں، جو ہے، جو ہے. جواد نہیں، جو ہے. جو ہے. دیکھو اس کو خود نہیں معلوم جواد ہے کہ جو ہے. جو ہے جواد نہیں ہے. جواد کے بعد جواد آتا ہے، وہ جواد نہیں ہے، جو ہے. تو ابھی یہ دیکھو، اس کو سامعین خود سمجھ لینا کہ اعظم جو ہے، اعظم جواد سے آتا ہے کہ جو کو آتا ہے. اس کو حرف نہیں معلوم کس سے اعظم آتا ہے. چل پتا چل سامعین سمجھ جائے. دیکھو جواد یہ کہتا اعظم جو ہے جواد سے آتا ہے، جبکہ جو سو آپ خود سنیں گے. ٹھیک ہے، میں نے کہا ارے یہ ریکارڈنگ ہو گئی ہے، جھوٹ مت بول. ٹھیک ہے، جھوٹ بول کے اپنی ذلت رسوائی مت سامان پیدا کر. تمہاری ٹائم ختم ہو گیا. یہ نہیں، میرے بیچ میں بول کے ٹائم ختم کر لیا، ڈر رہا ہے. یہ کہتے ہیں مجتہدین کے سردار فتاوی نجیریہ میں ہے. فتاوی امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ مجتہد مطلق بلا ریب. مجتہد مطلق بلا ریب، جس میں کسی کو شک نہیں، ایسے مجتہد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اب سوچو، مجتہد ان پر تو اجماع ہے، سب کہتے ہیں. بھائی تیری کیا حیثیت ہے تو بتا. تو یہ جواد اور جو میں فرق نہیں کر پا رہا ہے. یہ دیکھو، یہ اتنا بڑا غیر مقلد آیا ہے. جواد اور جو میں فرق نہیں کر پا رہا ہے. اعظم کس سے کہتے ہیں نہیں معلوم ہے. اعظم کس کو کہتے ہیں اس کو نہیں معلوم ہے. ہاں چل بتا. ہو گیا میرے بیچ میں بول کے ٹائم ہو گیا چلاتا ہے. نہیں، آپ 2-3 منٹ بول رہے ہیں، 37-36 سے بول رہے ہیں آپ. تو میرے بیچ میں بول رہا تو بولتا ہے ڈسٹرب کر کے. آپ نہ بولے نا میرے بیچ میں، پھر آپ تو سمجھدار ہے شرما. میں تو نہیں بولتا، تو کیوں بولتا؟ یہ ان سے میں ایک اصول پوچھا 2 مرتبہ، لیکن 2 مرتبہ اب یہ اصول خالی ہے. اب یہ جتنے بھی مرتبہ انہوں نے اجماع ہے، انہوں نے مانا ہے، ان کو مجتہد مانا ہے، تو صرف خالی کتابی باتیں، کیونکہ انہوں نے ایک ایسا اصول بتایا جس سے یہ پورے کے پورے مجتہد خود بخود ٹوٹ گیا. کیوں؟ کیسے ٹوٹ گیا؟ اس لیے ٹوٹ گیا کہ اللہ کے نبی کی بات ماننا جب تقلید ہے، صحابہ مقلد ہے، تو پھر بائی ڈیفالٹ امام ابو حنیفہ بھی مقلد ہو جائیں گے نا. تو مقلد کی تقلید ہوتی ہے، یا تو یہ ثابت کرنا پڑے گا تم کو، یا تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ تقلید کرتے کرتے کوئی مجتہد بن جاتا ہے. یہ 2 بھی ثابت نہیں کیا آپ نے. آپ الٹا ان کو مجتہد کی بجائے مقلد ثابت کر رہے ہو. ہم مان رہے وہ مجتہد ہے، وہ پڑھ کے مجتہد بنے، علم حاصل کر کے، تحقیق کا راستہ اپنا کے، علم کا راستہ اپنا کے، منہج سلف پر چلنے سے ان کو وہ مجتہد بنے، محقق بنے، محدث بنے. تم بول رہے ہو نہیں وہ تقلید کر کے. تو میں بتاؤ کون سی ایسی کتاب ہے جس کے اندر اصول کے اندر تقلید کرنے سے ایک آدمی مجتہد بن جاتا ہے؟ اور تقلید ہوتی ہے بنا دلیل والی بات پر. حدیث کی بات ماننا تقلید نہیں، قرآن کی بات ماننا. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ ثم نعوذ باللہ امام ابو حنیفہ کے پاس نہ قرآن تھا نہ حدیث تھی، صرف لوگوں کی باتیں بنا دلیل کی تھی، وہ خود مجتہد ہو گئے معاذ اللہ. اس کا مطلب یہی نکلے گا معاذ اللہ، کیونکہ
से कोई मुजतहिद कैसे बनेगा? सहाबा को मुजतहिद बोल, तुम मुकल्लिद बनाने के लिए तैयार हो, लेकिन इमाम अबू हनीफा को बोलो मुकल्लिद है, बोले तो पहले थे कहते, तो पहले थे इसका मतलब ये निकला कि अभी वो मुकल्लिद नहीं है, तो तकलीद करके कैसे कैसे कोई मुकल्लिद बनेगा? तो मैं पूछा कि जब अपने इमाम का एक मसला तुमको नहीं मालूम कि वो कहाँ तकलीद करते थे, तो तुम क्या तकलीद करोगे? खाक तकलीद करोगे? तो मैं पूछा, ये आखिरी टन इनको दे रहा हूँ, 2 टन दे चुका हूँ, एक उसूल बता दीजिए, 2 मिनट हो गया, बता दीजिए। खामोश रहे। अबे सामीन, आपने खुद देखा, देखो अल्लाह की शान है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के ये खुद मुज्तहिद कबूल कर रहा है, ये खुद कहता है मुहक्किक है, मुज्तहिद है और आलिम है, सारी चीजें इसने खुद खुद कबूल कर लिया है। ठीक है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये होता है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की शान, कि जो दुश्मन जिसके अंदर बुग़्ज़ है वो भी कबूल कर ले उनकी सलाहियत को और उनके मर्तबे को। माशाअल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। अब ये बार बार कहता है कि जब इब्ने क़य्यिम जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह की बात पेश कर दिया कि वो कहते हैं इमाम शाफ़िई मुक़ल्लिद थे इब्ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, फला फला इब्ने अता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। अब इनके मिआरुल हक़, ठीक है, नज़ीर हुसैन देहलवी खुद कहते हैं कि सहाबा कराम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़लीद करते थे। सहाबा कराम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़लीद करते थे। अल्लामा ज़हबी सीयर अलामिन नुबला में फरमाते हैं, फल मुक़ल्लिदून सहाबतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशर्त सबूतिल इस्नाद इलैहि। सोचो, फल मुक़ल्लिदून सहाबतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुद ये अल्फाज है। अब ये घामड़ को ये मालूम नहीं है कि तकलीद क्या है और फिर तहकीक क्या है। ये कहता है कि कोई भी तहकीक करके वो मुज्तहिद बनता है। अरे किसी तहकीक करेगा तो किसी की बात तो मानेगा। तू किसी के ज़ईफ और सही हदीस जब मानता है किसी आदमी के, तो खुद तहकीक करता है कि वो जो कह दिया हाँ ज़ईफ है तो मान लेता है, फला ने कह दिया फला रावी ज़ईफ है तो मान लेता है, कि तू जाके उस रावी की तहकीक करता है वहां जाके घर पे, है मान लेता है। तकलीद इसी का नाम है ना, तहकीक तो नहीं कर पाता। सारे जो हदीस का फन है ये तकलीद पर ही टिका हुआ है। जैसे अभी मैं ये बेचारा सरह सुन्ना का ही हवाला बार बार दूसरे को दे रहा, आज मैंने खुद जब सरह सुन्ना का हवाला देके उसी किताब से कह दिया कि वो फरमाते हैं कि दीन जो है तकलीद का ही नाम है, अल्लाह के रसूल की तकलीद, सहाबा कराम की तकलीद। अब सोचो, तब ये कहता है नहीं नहीं मैं नहीं मानूंगा, यानी ये इसके मुताबिक रहेगी तो मजा आएगा, इसके मुताबिक रहेगी। क्या टाइम हो गया? और तो 2 मिनट आप 15 सेकंड 16 सेकंड बोलिए, अभी कितनी देर बोलोगे? मेरा टाइम भी देख लिया करो ना, मैं टाइम देख के गुफ्तगू कर रहा हूँ ना। तो देखा सामने नहीं बताया अभी तक, नहीं 2.5 मिनट होने आ रहा तुम्हारे। झूठा कहेगा, चल अल्लाह की लानत हो झूठे पर, ठीक है? आमीन आमीन, तेरे जैसे झूठे पे, चल। हाँ वो तो अल्लाह को पता चलेगा ना, अभी तुम झूठ बोल रहे या मैं झूठ बोल रहा हूँ। अरे तो मैंने कहा इनका ये तीसरा टन था, ये तीसरा टन था। तीसरे टन में मैं इनको क्या पूछा था, इनको ये बताना था कि एक उसूल की किताब से बताओ जिसमें मुकल्लिद जो है तकलीद करते 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 मुज्तहिद बनता है। कोई उसूल इन्होंने नहीं बताया, क्योंकि ऐसा कोई उसूल है ही नहीं, क्योंकि उल्टा उसूल है इसका। इन्होंने जो नज़ीर हुसैन की बात बताई, ये जितने भी सलफ की बात बताई, जो ये मानते हैं कि सहाबा मुकल्लिद थे, तो ये बात मानना पड़ेगा इन लोगों को कि अल्लाह के नबी की बात बिना दलील है, क्योंकि तकलीद का माना ही बिना दलील वाली बात को मानना है। हाँ आप ये बोलो कि कुरान की बात मानना तकलीद है, बोलो हाँ कुरान की बात मानना तकलीद है। मानना तकलीद है, कहाँ लिखा है? तो कुरान की बात मानना तकलीद है, बिला दलील बात मानना तकलीद कहाँ लिखा है? मैं दलील देता हूँ ना भाई, आप ये बोले आप मेरे टाइम पे आप ना बोले, मेरा टाइम चल रहा, बीच में ना बोले, आपके टाइम पे आप बोल लें, ठीक है? तो कुरान की आयत को मानना ये तकलीद नहीं। अगर ये तकलीद है तो फिर बाय डिफॉल्ट पूरे के पूरे मुकल्लिद हो जाते, कोई मुज्तहिद नहीं रहता। इन्हों पूरों को मुकल्लिद बनाना चाह रहे हैं। हम बोल रहे भाई मुकल्लिद कैसे बनेंगे? इल्म का रास्ता हासिल करना, इल्म हासिल करना, ये कैसे तकलीद हो गई? ये तकलीद है कहते। इनको बोले, मैं पूछा कि अपने इमाम का एक मसला नहीं मालूम कि उन्होंने कहाँ तकलीद करते थे, और इन्होंने उनकी तकलीद चालू कर दी है, और उन्होंने बोलना ना मेरी तकलीद करो बोल के उन्होंने नहीं कहा। लेकिन सहाबा कराम को अगर मुकल्लिद मानते हैं तो फिर इमाम अबू हनीफा भी मुकल्लिद है, तो मुकल्लिद की तकलीद करना ये उसूल कहाँ है? और 2 उसूल इन्होंने बताना, 2 उसूल भी इन्होंने नहीं बताए, सिवाय इन्होंने 40-45 मिनट इन्होंने वक्त बर्बाद किया, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं बताया। इन्होंने पहले या तो इनको ये बात मानना पड़ेगा कि सहाबा कराम मुकल्लिद नहीं थे, ठीक है, और अल्लाह के नबी की तकलीद नहीं होती है, या फिर अगर मानते तकलीद होती है तो फिर ये बात मानना पड़ेगा कि सही ज़ईफ, अगर इमाम अबू हनीफा ने भी सही ज़ईफ कहा है तो फिर वो भी मुकल्लिद हो गए।
नहीं, वो भी क्योंकि उनके उस्ताद ने उनको बताया होगा कि हदीस सही है, ये हदीस ज़ईफ है, या फिर ये मौजू है, ये मनगढ़ंत है, तो वो भी मुक़ल्लिद हो गए ना। तो इसका मतलब ये निकला कि फिर से अगेन मुक़ल्लिद और मुक़ल्लिद सिर्फ तक़लीद खेल रही है, हदीसों पे तो कोई अमल ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये निकला कि हदीस है ही नहीं, माज़अल्लाह, पूरी तक़लीद ही भरी हुई है यहाँ से वहाँ तक। चलिए, नमाज का टाइम हो गया मेरे पास, भागा मत, डर के भागे मत, नहीं जा रहा हूँ, 1 मिनट दे रहा हूँ, मेरा 2 मिनट बता दीजिए। तू क्या उसूल बताएगा? तू 2 मिनट दिया तो 2 मिनट दे रहा हूँ, फिर भी खामोश रहे। हाँ सामाइन, आपने देखा इसके पास एक भी दलील नहीं। ये कहता है कि तकलीद मानने का नाम है बगैर इल्म के, कोई चीज इल्म नहीं है तो उसको मानने का नाम तकलीद है। मैंने दलील मांगा तो टाइम फिक्स हो गया, यानी इसके पास कोई दलील नहीं है। हाँ, ऐसे ही फेंक रहा है, ठीक है। और दूसरा कहता है ये नज़ीर हुसैन देहलवी को लात मार रहा है, बोलता है वो जो कहा वो गलत है, इब्न कय्यूम ने जो कहा वो गलत है, साहिब सरह सुन्ना वाले ने जो कहा 329 हिजरी वाले ने, पहले तो उन्हीं की किताब का मोतबर मान के दूसरों को दलील दे रहा है। अब मैंने जब दलील दिया तो उनकी बात गलत हो गई, यानी इसके खिलाफ जिसकी भी बातें हैं सब गलत है, ठीक है। इसके खिलाफ जिसकी अल्लामा ज़हबी ने कह दिया फल मुक़ल्लिदून सहाबा, वो गलत हो गया, ठीक है। और अल्लामा कुर्तुबी ने भी वही कहा है, यहाँ तक कि मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन ने भी फतावा नूर अल-दुर पे भी कहा है, वो तकलीद के हाथ में सहाबा रज़ी अल्लाह। भागना मत, मेरा 2 मिनट है, भाग 1 मिनट भी नहीं हुआ, 1 मिनट भी नहीं हुआ, भाग रहा है। ये कहते हैं सहाबा तकलीद जो है सहाबा कराम रज़ी अल्लाह के दौर में ही हासिल थी। सहाबा कराम मुकल वो तो बोले साहब अल्लाह के रसूल की करते थे, और की जब उनके अल्लाह के रसूल की छोड़ के फिर इमाम बन गए, कौन से? तो इमाम, हाँ विश्वास, ये बहुत अच्छा सवाल है, मतलब बहुत अच्छा। इमाम अबू हनीफा अल्लाह रसूल की